Yes. Namo Namaha. So we were talking about that this knowledge which has come from Veda Vyasa, correct? And yes, we were talking about many other things, but let's get back to the main topic fast. Okay, we were talking that, yesterday we have celebrated Ananta Chaturdashi. अनंत चतुर्दशी मीन्स जिसका सर्जन हुआ है उसका हम विसर्जन करते हैं. किसका सर्जन करते हैं हम लोग हमेशा? This is not the subtle body. When we want a gross object for our concentration, because mind cannot concentrate on abstract, and that's why we need a gross object so that we can start with the basic focusing. That focusing grow in the concentration, and that concentration becomes so much so deep that it gets converted into samadhi avastha, nididhyasan, where no mind, no body exist. How come it will not exist? It does exist, right? But when it goes to a subtle level, then it turns, or it becomes like as if no gross can hold us back. We get so connected to that object on which we are concentrating. So then that object is also not there, but the image of it, not only the image, the essence of it. And we become one with that. And that oneness, that is what the samadhi is. That is what is where we reach to the, we say that we reach to the Kaivalya. Only one. Right now, me and Mayre Bhagavanji, me and some object, me and this class, me and this lecture, me and the other person, right? We are living in Dvait right now, or maybe in plurality also. But when we are focusing, when we are doing our sadhana, we are getting connected to that one object. And that's why all the systems has accepted murti, an object to concentrate, because all the systems has accepted meditation, nididhyasan, contemplation, correct? कोई भी सिस्टम ले लो, दुनिया के कोई भी सिस्टम की बात कर रही हो, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया की कोई भी सिस्टम ले लो, अल्टीमेटली it is focusing, going through the 7 gates, going through the 7 energy chakras, and finally reaching to the highest state. All the system is talking about the same thing in a different way, but main principle, main philosophy remains same with everybody. And so for that, we need gross, we need an object, we need a murti, an idol. सिर्फ ऑब्जेक्ट बोले या उसको मूर्ति के रूम में बनाए, इट हेल्प्स बेटर. व्हाई? जितना सुंदर ऑब्जेक्ट होता है, जितना डिटेल वाला ऑब्जेक्ट होता है, उतना ही हमारा माइंड उसमें एनग्रॉस होता है. अगर कम से कम डिटेलिंग है तो एक दफे ध्यान गया, फिर हम लोग को बोर होने लगता है. द मोमेंट माइंड गेट्स बोर्ड, व्हाट माइंड विल डू? व्हाट माइंड विल डू? स्टार्ट वॉन्डरिंग अराउंड, इधर उधर घूमने लगता है, जैसे अभी थोड़ा हम लोग का घूमने लगा, करेक्ट? वो सब गड़बड़ हुआ है इसीलिए, करेक्ट? या, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ फोकस. सो फॉर दैट we are allowed means all the people who are trying to reach somewhere, who are ready to do sadhana, we are allowed to make our own murti, make our own Bhagavanji. And that's why according to Sanatan system there is no insistence यही भगवान होने चाहिए, इसी में आपको मानना है. You can connect to the female energy, you can have Devika Murti. If you are interested in male energy, you have Devaka imagination, so Devaka Murti. बट मेरे देव एकदम फिट एंड फाइन होने चाहिए, पतले होने चाहिए, उड़ सकने होने चाहिए, तो वैसा वाला नहीं, मैं खुद गोलगप्पा हूं तो फिर मेरे को ऐसे चाहिए. ओके, आप वाला, वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू कनेक्ट टू, एंड दैट इज हाउ different devas and devis has come into existence.
बच्चे का रूप, बड़े का रूप, मिडिल एज रूप, सब रूप में. Why so many रूप? Because we all have different understanding. We like different things. We can connect to different things. And that's why to suit each and every person, you can choose your own Bhagwan Ji. Or in short, Bhagwan Ji means your idol, your Vigraha, your Murti, your object of concentration. कोई बोले हमें कोई मूर्ति नहीं चाहिए, हम लोग थोड़े एक्सपर्ट है, ओके, कोई भी लेटर का आकार चलेगा. ओमकार इज द बेस्ट वन फॉर देम. सो लाइक अगर आप सगुण में मानते हो तो वी हैव सो मेनी आकारास विथ डिफरेंट गुणास, बिकॉज यू नो वी कैन कनेक्ट. अगर मैं कंपेशनेट हूं तो मुझे कंपेशनेट चाहिए. मैं कंपेशनेट नहीं हूं, मैं बहुत गलतियां करती हूँ, मैं बहुत भूल करती हूँ, तो मुझे कैसे वाले भगवान जी चाहिए? मारने वाले? तो हमें कैसे भगवान जी चाहिए? प्यार करने वाले. मैं कितनी भी गलती करूं लेकिन वो हमेशा मुझे माफ करने चाहिए. करेक्ट? करेक्ट. एंड दैट्स व्हाई जनरली वी ऑल हैव दैट काइंड ऑफ भगवान जी जो कृपा निधान हो, दयालु हो, करेक्ट, कंपेशनेट हो, कारुण्य मूर्ति हो. और उनकी आंखें हम ऐसे बनाते हैं, उनके हाथ ऐसे बनाते हैं हमेशा से वरदान की मुद्रा में. ऑल दैट सिंबल्स आर फॉर व्हाट? टू सूट ऑल ऑफ अस, so that we can go ahead in our sadhana and finally reach the highest stage. When we reach a stage higher, then do we need now, do I now know A for apple, B for boy, C for cat, to learn or to say, to speak? Do I need that? No. So do I every day repeat A for apple and then I start saying the sentence? Do I always repeat standing line and sleeping line before starting my writing? वो तो हम सालों पहले भूल गए, right? So we have to grow, we have to go higher. And so the basic idol, the basic shapes, the basic akaras, the basic gunas, we have accepted for our concentration. What are we supposed to do? We have to leave that and go beyond. Who created it? Who started with it? कोई और? कि हम खुद ने हमारी साधना के लिए शुरू किया है? हमने खुद ने शुरू किया है, हमारे लिए शुरू किया है. तो फिर अभी उसको छोड़ना किसको पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा. अगर वो सामने ही सामने रहेगा तो क्या होगा? बार बार लगातार. अगर हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं, पानी में नया तैरना सीखे हैं, तो पहले फ्लोट लेते हैं. जो लोग भी सीखे होंगे, या तो जो कुछ भी नया साइकिल चलाना सीखते हैं तो, करेक्ट. लेकिन अगर जो चीज का हमने आधार लिया है, वो आधार हमारे सामने है, तो वो आधार हम आसानी से छोड़ पाते हैं क्या? हमारे टीचर क्या करेंगे? वो फ्लड को दूर जाके रख के आए, तू जा भी पानी के अंदर, राइट? वाई? क्योंकि वो अगर आधार रहेगा तो बार बार लगातार हमारा मन उसी में जाएगा, और उसके आधार के बिना हम आगे जा ही नहीं सके. नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता है ना, एक दिन और, एक दिन और. ऐसे सब लोग करते रहते, एक साल और गणपति लाएंगे, एक साल और गणपति लाएंगे, एक साल और गणपति लाएंगे. We have to come out of that dependency of Saguna Sakar Murti for concentration, for sadhana. And so what are we supposed to do? जो हाथों ने उसका सर्जन किया है, वही हाथ से हम उनका विसर्जन करते हैं. इसलिए जो गणपति लाते हैं ना, वही खुद पधराने जाते हैं, राइट? ऐसा कहते हैं ना, मेरे गणपति मेरे को तो जाना ही पड़ेगा. ना ना ना, ये रिचुअल है. क्यों भाई मेरे को जाना पड़ेगा? मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तो. No, it's not about time or no time. It is I created for my own purpose. Now I have to do विसर्जन. और फिर विसर्जन कैसे करेंगे हम लोग? जिसमें से बनाए हैं उसी में. मैम पानी के नहीं बनाए थे, नहीं पानी के नहीं बनाए थे, लेकिन कैसे बनाए हैं? पंच महाभूत से बनाए थे, राइट? इसलिए उनको पंच महाभूत में ही विसर्जित करना होता है. अल्टीमेटली हम सब भी पंच महाभूत में विसर्जित होंगे, करेक्ट? करेक्ट. दैट इज व्हाट इट इज, द सेम प्रक्रिया. And that's what we do it. Now, when we start our sadhana, who helps us? Yes, जो आइडल हमने बनाया है वो. लेकिन आइडल की क्या पूजा करना है, साधना क्या करना है, कौन सा मंत्र करना है, कौन सा मंत्र नहीं करना है, वो सारे रिचुअल्स या तो वो सारे नॉलेज, वो हमें किसने दिया? किसने दिया? कहा कि भाई यस, तेरे को साधना करने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ेगी वगैरह, ये सारा बताया है किसने? हमारे कोई गुरु होते, राइट?
गुरु से पहले हमारे माता पिता होते हैं, राइट? सो हमारे माता पिता, हमारे गुरु, या तो हमारे गुरु ने या हमारे माता पिता ने किससे, हमारे माता पिता ने अगर गुरु से लिया है, तो फिर गुरु ने किससे लिया, कहां से लिया है ये नॉलेज? हमारे गुरुओं ने कहां से लिया है ये नॉलेज अल्टीमेटली, यार रेनू वाला? मैम उनके गुरु से और उनके स्क्रिप्चर गुरु से। से। या तो वो गुरु परंपरा कहां तक जाती है, अल्टीमेटली हाईएस्ट गुरु कौन है? भगवान शिव। हाँ। या तो जगत गुरु श्री कृष्ण, या तो आदि गुरु शिव, करेक्ट? और आदि गुरु शिव ने या जगत गुरु श्री कृष्ण ने जो भी कहा है वो किस में स्टोर है? स्क्रिप्चर्स में मैम। हाँ, कौन से स्क्रिप्चर्स में? व्हेन वी से स्क्रिप्चर्स, व्हिच आर द स्क्रिप्चर्स? वेद। वेद। करेक्ट? सो वी हैव टू वी जस्ट कनेक्ट। सो वो वेदों का ज्ञान जो हमारे गुरुओं ने जाना, समझा, आत्मसात किया, वो हमें बताया, हमारे माता पिता या हमें, मतलब जो भी बोलो, वो हमारे तक उनके थ्रू आया ना। व्हेन वी आर स्टडी, यू नो, to everybody, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, करेक्ट? बहुत सारे लोगों ने नहीं, सारे लोगों ने मुझे विश किया और अपने अपने टीचर्स को विश किया था। क्यों विश किया था? क्यों 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 विश किया हम लोग ने एवं ही? और नहीं नहीं पास नहीं करेंगे, फेल करेंगे, वो डर से नहीं ना? हाँ, क्यों विश किया था हम लोग ने हमारे टीचर को? और सब लोग ने कोशिश की थी एक लाइन खुद की लिखे, राइट? वैसे वो फोटो फॉरवर्ड करते हैं तो उसके साथ में कुछ एक लाइन लिखने की कोशिश की है ना, कि मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ा उनकी वजह से। वाई डिड वी विश? वाई डिड वी विश? क्योंकि उनसे हमें ज्ञान मिला था। जिनसे हमें ज्ञान लिया था, तो टू शो माई रिस्पेक्ट और टू शो दैट यस आई स्टिल रिमेम्बर यू, यू नो। हम लोग तो कनेक्टेड हो, ये वाले स्टूडेंट, ये साल के स्टूडेंट, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं, हम भी हमारे पूरा अर्लियर टीचर को, बहुत सारे लोग ऐसे भी आज भी हमारे स्कूल के टीचर को या कॉलेज के टीचर को कुछ ना कुछ मैसेज भेजते ही है, करेक्ट? करेक्ट? सो वाई? आउट ऑफ लव, अफेक्शन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, because they give us this knowledge and this knowledge is helping me, करेक्ट? तो हम उनको श्रद्धा से, प्यार से याद करते हैं। स्पेशली हम कब किसको याद करते हैं? वैसे तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत भूल जाते हैं ना। हाँ मैम, टीचर्स डे आता है तब, या गुरु पूर्णिमा आती है तब। when what they taught, when we are practicing, that time we remember, हाँ उसने मेरे को सिखाया था, अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है वो, करेक्ट? वॉट एवर वी लर्न फ्रॉम समबडी, दैट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग, उस वक्त यार मेरी माँ ने बहुत मार मार के सिखाया, ये तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट? करेक्ट? एंड इसीलिए दिस आर द डेज, यू नो, गणपति के दिनों से वी स्टार्ट अवर साधना, एज वी मेंशन, नो, करेक्ट? एंड आफ्टर दैट गणपति जी का विसर्जन कर दिया, मूर्ति अभी रही नहीं आधार के लिए। अभी क्या है, जो भी मेरा लर्निंग है उसके बलबूते पे ही मुझे मेरी साधना आगे करनी है। एंड जब वो मेरी साधना में करता हूँ, उस वक्त क्या होगा? कुछ गड़बड़ होगी, कुछ आगे बहुत बड़ा विघ्न आएगा, या आगे बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा, या कुछ गिरेंगे करेंगे, तब याद आएगा ये सिखाया था, इसमें ऐसे करना होता है, उसमें वैसे करना होता है। अच्छा अच्छा, थैंक गॉड। एंड देन भले ही हम उसको मैसेज ना करें, भले ही हम उसको व्हाट्सएप ना भेजे, भले ही उनको लेटर ना लिखे, भले ही उनको कॉल ना करे, लेकिन दिल में, मन में हम याद तो करते हैं, वी कनेक्ट टू देम, करेक्ट? इसीलिए श्रद्धा से याद करने के दिन मतलब श्राद्ध के दिन। Can any one of us come into existence without them? Without all our forefathers, including all the gurus and all? Can we be what we are today without their contribution? हम अच्छे हैं, जो कुछ भी है, पहले बहुत बुरे थे, उससे थोड़े बेटर हुए हैं। पहले एकदम हम लोग मिट्टी के लंप की तरह थे, उसको आकार जो मिला है, जो उसको संस्कार जो मिला है, उसको जो शेप मिला है, इज इट बिकॉज ऑफ मी और मेरे ही सिर्फ कर्म? नो। हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट? डू वी हैव एनी आइडिया?
इन्यूमरेबल पीपल, राइट, इन्यूमरेबल पीपल। तो हम एक एक को पकड़ करके कहाँ कैसे कहने के लिए जाए? एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस 15 days, 16 days rather, पूर्णिमा एंड अमास। सो एक से लेकर के अमावस्या तक, दैट 15 days एंड पूर्णिमा, क्योंकि दे मस्ट हैव लेफ्ट दिस बॉडी, क्योंकि हम तो बॉडी के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं, राइट? सो ये 16 दिनों में से कोई एक दिन को उन्होंने ये बॉडी छोड़ा होगा, करेक्ट? इसमें से कोई एक तिथि के दिन ही वो छोड़ा होगा उन्होंने जन्म, उनका ये बॉडी। इसलिए इनमें से कोई एक दिन जिस दिन वो गए थे, उस दिन तो खास उनको याद करने का, या तो ऑल ऑफ देम हु हैज कंट्रीब्यूटेड समथिंग इन जनरल याद करते थे। इसलिए हम लोग को, हाँ, हाउ स्मार्ट आवर ऋषि मुनिज आर, क्योंकि एक दिन इन्हें सर्व पितृ श्राद्ध, मुझे मालूम ही नहीं है मेरे ये पिताजी या मेरे ये दादाजी कब गुजर गए थे, तो एक दिन सर्व पितृ श्राद्ध, मुझे लगता है अमावस्या इज दैट, करेक्ट? जितने भी लेडीज है उनका ये दिन को सबको है दोषी श्राद्ध कहते हैं, जिसको वृद्धा। हु इज वृद्ध और हु इज वृद्धा? जो भाव, प्रेम और बुद्धि में बढ़े हैं, वृद्ध हुए हैं। वृद्धि होना मतलब क्या? बढ़ना, राइट? तो जिसके जीवन में बुद्धि के साथ में भाव और प्रेम की वृद्धि हुई है, वो सारे वृद्ध। और वो लोग फिर वृद्ध होने के बाद में एकदम जो फल है वो एकदम पक जाता है, मतलब सारे रस से एकदम भरा होकर के राइप हो जाता है, तो क्या होता है? वहीं पे टिका रहता है क्या? वहीं पे टिका रहता है? तो नहीं, सब लोग पेड़ तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी तोड़ा है तो गिर जाते हैं वो। अपने आप गिर जाते हैं। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ये वाला हमारा जो श्लोक है ना, वैसे वो शिव जी का जो माना जाता है ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, कि भगवान मेरा जीवन ऐसा हो कि सब हिसाब से पूर्ण हो करके फल जैसे अपनी डाली से अपने आप अलग हो जाता है, वैसे ही मैं ये सारे बंधनों में से सारे मेरे कर्म कंप्लीट करके मुक्त हो जाऊं। सो ब्यूटीफुल। सो वैसे ही झाड़ में से नीचे जैसे फल आता है, उसी तरह हमारे हर एक गुरुजन, हमारे हर एक माता पिता, जनरेशन से जनरेशन वो कभी ना कभी यहाँ से गए हैं, राइट? अपने जो भी कार्य थे वो कंप्लीट करके। तो फिर अभी हमारा का व्हाट इज अवर ड्यूटी, व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू रिमेम्बर देम एटलीस्ट व्हेन वी प्रैक्टिस इट, करेक्ट? इसलिए वो पहले प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, साधना इज इंपॉर्टेंट। वी स्टार्टेड द साधना एंड व्हेन वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, एंड दैट टाइम वी रिमेम्बर विथ लव एंड अफेक्शन। सो ये साधना का सेकंड स्टेज है कि नहीं? हाँ या ना? फर्स्ट स्टेज शुरू के 10 डेज में गया, करेक्ट? ये सेकंड स्टेज शुरू हुआ। सेकंड स्टेज इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग इट, वी नीड टू फोकस, करेक्ट? जो हमने सीखा है घर पे, हाँ, अभी लेक्चर में अगर होते हैं इधर उधर जाते हैं, और उसमें भी जब भी मालूम था कि वो मिलता है अपने को, रिकॉर्डिंग मिलता है, तो आप में से बहुत सारे लोग जितना कंसंट्रेशन यहाँ रखते हैं, कभी कभी इधर उधर घूमने चले जाते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलने वाला है करके। लेकिन अगर आप में से जिन लोगों को आदत थी, जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, अगर आपको ये आदत थी कि वो रिकॉर्डिंग लेकर के आप वापस बैठते, आपके नोट्स वापस लेकर के बैठते हैं, टैली करते या ऐड करते या वो करते, जो भी वो करेक्शन कर रहे थे, अपने आप को याद करो, यू आर मच मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैट टाइम और इन द क्लास, much more focused, much more connected in the second stage. Second stage is most important, क्योंकि मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, मैंने जो जाना, उसको अभी मैं वापस दृढ़ कर रही हूं। इसलिए सेकेंड स्टेज में मोर फोकस इज नेसेसरी। अगर वो नोट्स बना रहे हैं और उसमें अगर कोई बीच में कोई डिस्टर्ब करे, तो बीच में से हमें उठ करके कहीं जाना पड़े, तो इट्स मोर डिफिकल्ट। वी शुड नॉट डू दैट, राइट? कि एक दफे ये खत्म कर लेने दो, राइट? Why? Because now we need utmost attention, utmost focus, and that's why when we are in the second stage, when we are going through in sadhana, when we are going through shraddha days, that time फालतू काम बीच में लाने का नहीं, शॉपिंग करने नहीं जाने का,
शादी ब्याह सगाई वगैरह नहीं करने का और कोई फंक्शंस नहीं रखने का। क्यों? बस और सारे फंक्शंस में हमारी एनर्जी जाती है। राइट नाउ आई नीड माई फोकस, माई एनर्जी, एवरीथिंग। वेयर माई अटेंशन, वेयर डू आई नीड इट? आई नीड इट वेयर? इन दिस साधना। अगर ये समय गड़बड़ हुआ, अगर एक आध स्टेप भी समझ में गलत समझ में आया, सो देन आई विल कंटिन्यू माई प्रैक्टिस इन दिस रॉन्ग वेज। यू अंडरस्टैंड? फिर हमारी गलत हैबिट होने लगती है। we are, so many people, we are doing so many sadhanas, so many tapasya, upasana वगैरह वगैरह वगैरह। if we get chance, please, go through Bhagavad Gita. उसमें है ना सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप दिया है। तप होता है भाई, शुद्धि करता है। No, they are having category. There are many tapas which are tamasic tapa, which is not helping me to go ahead. In fact, because of that, we get stuck, more and more stuck. And we are full-fledged तामसिक तप कर रहे हैं, इतनी शुद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहीं पे अटके हुए, वही गुस्सा है, वही सारी फ्रस्ट्रेशन है, वही सारे प्रॉब्लम्स है। Is it helping me? Is it my sadhana? Is it taking me towards urdhvagati, towards my dharma, or it is leading me to adharma? You understand? हमें लगता है हम तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार सब लोग कितने धार्मिक हो गए, सब जगह देखो गणपति आ रहे हैं, सब जगह पे देखो ढोल नगारे बज रहे हैं, सब लोग देखो रात को जाग जाग करके भगवान जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे घंटों तक। बड़े बड़े लोग, अंबानी से लेकर के, अंबानी की बहुओं से लेकर के सब लोग भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। कितना धर्म बढ़ा है? धर्म बढ़ा है क्या? और जो लोग ये करते हैं, आई मीन जो लोग ये करते हैं, मैं ये कह रहे थे, आस्क मी इन माय एरिया, इतने बड़े गणपति आए थे और उसके लिए इतना तामझाम हुआ है, लाखों में अभी कभी बात नहीं होती है, छोटे छोटे मंडपों में भी करोड़ों की बात होती है। ओके, वो सब हुआ, लेकिन आज भी वो गली में इतना ही कचरा है। अरे इतना सारा पैसा उसमें यूज कर रहे हो, एक दफे सैनिटाइजेशन का तो काम करो भाई तुम लोग। वहां पे भगवान नहीं रह सकता है। अगर हम बहुत कुछ साधना करते हैं, लेकिन अभी भी वही chaos है मेरे अंदर, इज इट माई साधना? देन इट इज नॉट साधना। इज इट धर्म और अधर्म? व्हाट इज धर्म? व्हाट इज धर्म? What is the definition of dharma? We have mentioned it many times. What is the definition of dharma? Yes, of course, I will be mentioning it. But what is the definition of dharma? Which uplift us. Very nice, हाँ. I'm very happy with this meaning भी. It takes me ahead in spiritualism. जो मेरे को spiritualism में आगे ले जाए. Okay, जो मुझे spirituality में, spiritualism में आगे लेके जाए. Very nice, very nice. Right meaning, correct meaning. Anybody will give a word or two in Sanskrit? उसका धर्म, वो जो अपलिफ्टमेंट। मैम पूरा याद नहीं आ रहा है, बट धर्मो रक्षति ऐसा कुछ है। वो धर्म उसकी रक्षा करते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं, तो वही धर्म क्या, जिसकी रक्षा करने से धर्म मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, इज इट अभ्युदय? वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी, वी ऑल नो एवरीथिंग। और थोड़ा धूल आ जाता है। ओके, यस। या तो अभ्युदय, निश्रेयस सिद्धि, सधर्म। धर्म वो है जो मेरे अभ्युदय, अपलिफ्टमेंट, एंड निश्रेयस, मोक्ष, कल्याण के लिए मदद रूप होता है वो धर्म। जो चीज मेरे अकल्याण के लिए है, मेरे को नीचे और गिराता है, या तो लोभ, मोह, मद, मत्सर से और बांध रहा है, आहा मैंने तो इतना किया, हो मैंने तो इतना किया, अगर उसमें मुझे बांध रहा है तो वो धर्म है क्या? अगर वो मुझे बांध रहा है तो वो अधर्म है। अगर वो मुझे मुक्त कर रहा है तो धर्म है। अगर जो मैं लेवल में हूं वहां से थोड़ा और ऊपर, हम ऊपर कब जाते हैं? अगर बहुत ज्यादा कचरा या तो बहुत ज्यादा सामान मेरे साथ है तो, कि मेरे साथ कम सामान है, कम कचरा है तो। सत्व कब उभर करके निखर करके आएगा? जब तमस ज्यादा है तब, कि तमस कम होने लगेगा तब? तमस कम होता है जब।
तमस कम होने लगा। साधना क्यों है? तमस को बढ़ाने के लिए कि तमस को कम करके? अगर तमस कम होता है तो ऑटोमेटिकली रजस की वजह से सत्व बढ़ता है, राइट? सत्व बढ़ाने के लिए हमारी साधना होती है। अगर कोई साधना तमस मेरा बढ़ाता है, मेरा अहंकार, मेरा और बाकी सब बढ़ाता है, यू नो मैं पहले बहुत उपवास करती थी और कर सकती थी। ओके, आज संकष्टी है तो करेंगे, गुरुवार तो करना ही चाहिए, अभी श्रावण है तो सोमवार करेंगे। फिर कोई हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग गए हैं या जिसको मैं बहुत प्यार से मानती हूँ वो गए तो उसके पीछे में 11 एकादशी करेंगे, तो उपवास करेंगे, उपवास। ओके, तो ऐसे सब कुछ करती थी। और कभी कभी ऐसे होता था, और फिर अष्टमी करेंगे, जन्माष्टमी गई तो जन्माष्टमी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऋषि पंचमी है तो ऐसे ऐसे कभी ऐसे होता था कि श्रावण भादरवे में, श्रावण में तो ऐसे ही होता है कि वो 20 दिन तो ऐसे ही उपवास में चले जाते थे। तो फिर हम सोचते थे कि उससे 1 महीना ही कर लेना, महीने का पुण्य मिलेगा। ओके, और फिर 1-2 दफे ऐसे हुआ कि माई डॉटर कंप्लेन कि यू गेट हैंग्री भाई, जस्ट कीप अवे फ्रॉम मी, यू गेट हैंग्री। ऐसे हैंग्री है क्या हुआ तेरा? तो बोले कि व्हेन यू आर हंग्री यू गेट एंग्री। ये तुम्हारा धर्म है क्या? मत करना ऐसा उपवास तू भाई। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार, वो बहुत भूख लगी थी और खाया नहीं था और कुछ भी पिया भी नहीं था, ये नहीं हुआ था, तो मेरा दिमाग एकदम 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ था। और उसमें हाउ मेनी पीपल आई एम हर्टिंग, आई हैव नो आइडिया ओनली। हाउ मेनी थिंग्स आई एम जस्ट डिस्ट्रक्टिंग। सबसे पहले तो आई वॉज डिस्ट्रक्टिंग माई काम, क्वाइट, पीसफुल एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। ये सबसे बड़ा पाप है, करेक्ट? किसी और को परेशान तो बाद में खुद को परेशान किया। खुद का स्टेट ऑफ माइंड, खुद की समानता इम्बैलेंस की। तो ये साधना मेरी साधना हुई क्या? हमें साधना क्यों करना है? समानता है। साधना क्यों करना है? माई माइंड बिकम्स काम, क्वाइट, पीसफुल, रिलैक्स। हमें साधना क्यों करना है कि मेरा सत्व रजस तमस जो इम्बैलेंस है, तमस ज्यादा है, वो धीरे धीरे बैलेंस की तरफ जाए। तो बैलेंस की तरफ कैसे जाएंगे? कि तमस कम होगा, सत्व बढ़ेगा। तमस यहाँ है और सत्व कहीं नीचे है। अगर हम साधना करेंगे तो सत्व ऊपर आएगा, तमस नीचे जाएगा। व्हेन सत्व रजस तमस बिकम्स बैलेंस, मुक्ति, मोक्ष, अपवर्ग, रियलाइजेशन। तो अगर मेरी साधना ये करने की बजाय ऑपोजिट करती है तो व्हाट इज द पॉइंट? ऐसी साधना ना करे तो ठीक है, करे। हमें हमारे माता पिता, मतलब मेरे माता पिता ऐसे ऐसे व्रत करने से मत कर। मेरे पापा हमेशा कहते तू ऐसे ऐसे व्रत किए करने के बदले में मत कर, ऐसे ऐसे मंदिर कंपलसरी नहीं जाने के बदले में मत जा। मेरे पापा बहुत कम मंदिरों में गए। मेरे घर में कभी सत्यनारायण की कथा तब नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वही गलत गलत ढंग से सत्यनारायण करे, क्योंकि मेरे पापा वो गलत, तुम गलत श्लोक बोल रहे हो, तुम ये गलत करा रहे हो। और फिर पापा बोले कि मैं वो पंडित को बुलाऊं और कंटिन्यूअसली मेरा ब्लड प्रेशर आ रहा है, तू ये गलत 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 गलत। बोले मेरा ध्यान ही भगवान में नहीं रहता है, व्हाई शुड आई डू इट? व्हाई शुड आई डू दिस पूजा? बेटर आई डोंट डू इट। बेटर आई डू दैट which makes me calm, quiet, peaceful and relaxed. भले ही कुछ नहीं करके ऐसे शांति से बैठ करके, अगर कुछ ओम करना है करो, नहीं करना है तो जस्ट बैठने से भी इफ माई स्टेट ऑफ माइंड इज बिकमिंग काम, अलाउड है। निर्गुण निराकार कुछ भी नहीं करना, निवृत्तिवाद अलाउड है कि नहीं हमारे सिस्टम में? अलाउड है। कुछ नहीं करना अलाउड है, इफ दैट इज टेकिंग यू हायर। हम लोगों का कुछ नहीं करना क्या हो जाता है? इविल करना हो जाता है ना, इविल आ जाता है। इसीलिए हमें कहा गया है कि कुछ करो, लेकिन जो लोग वो लेवल पे पहुंचे हैं उनके लिए वो भी अलाउड है। एंड सो दिस इज द साधना। व्हेन वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज सत्व, देन ओनली इट इज साधना, देन ओनली इट इज साधना विच इज लीडिंग टुवर्ड्स द धर्म, which is helping me for my abhyudaya and my nishriyasha. Abhyudaya means upliftment, ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति होती है मतलब क्या? सत्व बढ़ता है, करेक्ट? एंड अगर सत्व बढ़ता है तो हम लोग वी आर गोइंग टुवर्ड्स व्हाट? शुभ, कल्याण। वी गो टुवर्ड द मोक्ष, निवृत्ति। एंड सो फॉर दैट वी आर ट्राइंग, वी आर डूइंग दिस साधना। और ये साधना हमें ये क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये बात हमें किसने बताई है?
हमारे स्मृति, हमारे श्रुति ने, हमारे वेदों ने, और वो वेद हमें इंटरप्रेट किए, समझाए हमारे गुरु ने, इसलिए वी कॉल इट व्हाट? शब्द प्रमाण, राइट? इट इज अवर शब्द प्रमाण। वो शब्द प्रमाण को याद करके उन्होंने जो सिखाया है वो प्रैक्टिस करना आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, लव, एंड दैट डेज आर नोन एज श्राद्ध। इसलिए इसमें और कुछ नहीं करने का। ये पूरा सिस्टम, वेद का सिस्टम, वाज इट इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट, इम्बाइब, प्रैक्टिस? क्योंकि वेद में कितना है, oh my God, it was too much. And there were people, there were students who were trying to imbibe everything. Many of them, many of them succeeded. But there were many who were like us, like commoners. कुछ ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, कुछ ज्यादा ये नहीं है, कुछ ज्यादा ताकत नहीं है, कुछ ज्यादा शक्ति नहीं है, एकदम मेधावी नहीं है, वैसे बहुत सारे हैं हमारे जैसे, राइट? For them, a person came forward. For all of them, for all the weaklings, for all the students, for all the people, for all the manushya who are not extraordinary, common men, आर के लक्ष्मण वाला बेचारे के साथ में हर बार गड़बड़ होती है, उन लोगों के लिए एक बंदा आगे आया कि आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना सारा है, हमें इसमें से क्या करना है वही समझ में नहीं आता है। घास की गंजी में से सुई को कैसे ढूंढे, बोले कि दैट ऑल्सो वी विल डू। एंड सो he compartmentalized or divided the complete knowledge, मतलब वेद, knowledge means वेद धातु से आया है, with means to know, and so Veda is what? Knowledge, pure knowledge, only knowledge, only knowledge. This is the only knowledge. There is nothing further, nothing less than that. अगर हमें कोई भी ज्ञान की जरूरत है तो हमें सिर्फ वेद की जरूरत है, बिकॉज वेद मीन्स नॉलेज, दैट्स ऑल। लेकिन वो जो नॉलेज था उसको, विच हैज मेनी एस्पेक्ट्स, राइट, मेनी लेवल्स, वो सारे लेवल्स को मैं कैसे समझूं, मैं कौन से लेवल पे हूं, मुझे कैसे पता चले? एंड फॉर दैट कृष्ण द्वैपायन was dark in complexion, who was born on Dvipa because of Rishi Parashar's effort, and Rishi Parashar helped. Later on she became Satyavati. Earlier her name was Matsyagandha, correct? Because she was having, fishy smell. What does it mean? Impurities were more in the body, right? बहुत सारे लोगों की पसीने की वगैरह की आती है स्मेल ज्यादा, हम लोग उसको क्या कहते हैं? तुम्हारे पेट की शुद्धि की जरूरत है, खबर? अगर उसको आयुर्वेदा में भेजेंगे तो वो लोग वही करेंगे, क्लेंजिंग, षटकर्मास, करेक्ट? अपने आप षटकर्मा करेंगे तो फिर योगा कर पाएंगे, एंड देन अपने आप मुंह की बेड ब्रेथ वगैरह अपने आप करेक्ट हो जाता है। जो लोग योगा में है उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है क्या? इसके बिना योगा करते हैं ना तो भी ये प्रॉब्लम नहीं आता है भाई। करेक्ट? यस, वाई? शुद्धि हुई है, करेक्ट? एंड सो when we are doing this sadhana, practices which is given in our Veda, which was too much, which was simplified, compartmentalized and divided by Krishna Dvaipayan. He was born in Dvipa under Matsyagandha. Matsyagandha was treated by Parashar Rishi कि उनकी ये सारी अशुद्धियां दूर हुई, एंड फ्रॉम मत्स्यगंधा शी बिकेम व्हाट? सत्यवती। सत्य, सत्य मतलब जो सत्य को कनेक्ट करे वो। She has become complete truth or walking on the path of truth. She became Sat aspect, ever existing. And so she connected to that. And still, she remained complete, correct? फिर भी उनको पवित्र माना गया, because later on she got married to, correct, other person, right, the king, and that king then later on had many other children. The king was already having a son, Bhishma Pitama, right, and then he has Vichitravirya वगैरह और फिर सारे बच्चे उसके हुए. And so
This Krishnadvampayan systematized, compiled, compartmentalized, divided, complete knowledge of Veda. And so he divided into how many parts? 4 parts, right? And all the 4 parts are, means these 4 parts are known as what? जल्दी जल्दी कोई बोल लो फटाफट, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ ना. कौन से फर्स्ट 4 पार्ट्स है जिसमें उन्होंने डिवाइड किया? जल्दी जल्दी. यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड यजुर्वेद, अथर्ववेद. अथर्ववेद. करेक्ट. एंड फिर वहां पे बैठे रहे, फिर उसके बाद में हाँ नो, हाँ ऋग्वेद के रिलेटेड जितने भी है उसमें भी इतना कुछ था कि उसके ऊपर के श्लोक है, फिर ये कब यूज करने, कब ये यूज करने, वो सारा था. तो उसको फर्दर कंपार्टमेंटलाइज किया, राइट. फर्दर इट वाज डिवाइडेड, chapterization, correct. And so first chapter always संहिता. ये आज का दिन क्या है? हाँ, now it has come. Yes. Net issue. Net issue, no problem. But you know, despite of all the issues, हम डटे रहेंगे. After that, he chapterized everything. And so, what is the first chapter of all the Veda? संहिता. संहिता या तो मंत्र, करेक्ट. रुचा है, हाँ, जो जिसको हम लोग ऋचा कहते हैं या रुचा, गुजराती वाले लोग रुचा बोलते हैं, या तो हिंदी वाले लोग, संस्कृत वाले लोग ऋचा बोलते हैं, रुचा. ओके ओके. सो वो लाइंस है संस्कृत में लिखी हुई, विच इज वेरी प्रेग्नेंट विद द मीनिंग, करेक्ट. हाँ. सो सारी पहले ऋचा है, सारे श्लोकस या तो सारे मंत्र. व्हाट इज मंत्र? What is the meaning of mantra? We have done it. Mantra means, anybody, can you help me? Sanskrit letters. It is Sanskrit. It is Sanskrit letters. Because all the languages were born from Sanskrit only. So, बीज मंत्र मतलब वो जो सीड है वो संस्कृत के ही लेटर्स है सभी, करेक्ट. लेकिन उसको मंत्र क्यों कहा गया है? So mantra is a sentence or a word which has some different meaningful, उसका कुछ अलग ही मीनिंग रहता है. उसका डीप मीनिंग रहता है, इसलिए ईच एंड एवरी लेटर इज ऑल्सो प्रेग्नेंट विथ मीनिंग, करेक्ट. उसमें बहुत पावर होता है, उसमें बहुत शक्ति होती है. सो व्हेन वी यूज इट वी गेट दैट एनर्जी, दैट पावर इन अस. इसलिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मंत्र दिया जाता है. What is mantra? Mantra is always combination of letters. Combinations of letters, syllables. Correct? Om, Rim, Krim, Shrim. करेक्ट. वो एक एक मंत्र है, एक सिंगल लेटर मंत्र हुए, करेक्ट. फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर ये भी चाहिए ये भी चाहिए, अगर हमें है ना मन की शांति भी चाहिए, लेकिन फिर हमें है ना हमारे कमर को भी थोड़ी एक्सरसाइज चाहिए, तो हम पर्टिकुलर वाला आसन करेंगे. नहीं, हमें हमारी कमर ठीक है लेकिन पैर को भी चाहिए, लेकिन मन को भी शांत करना है, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे, करेक्ट. एंड सो लाइक दैट व्हाट वी वांट, व्हाट पावर वी वांट. अगर कोई पावर मेरे में ज्यादा है तो उसको थोड़ा बैलेंस करना है, करेक्ट. Anything in excess is right, anything in lesser than the needed level, is it right? अगर हमारा चक्र, कोई एक पर्टिकुलर चक्र ओवर एक्टिवेटेड है तो भी वो इम्बैलेंस कहलाता है. ब्लड प्रेशर हमारा हाई है तो भी इम्बैलेंस, ब्लड प्रेशर हमारा लो है तो भी इम्बैलेंस. हमारा ब्लड प्रेशर 80-120 रहना चाहिए आजकल के हिसाब से, करेक्ट. उसे बढ़ा तो भी गड़बड़, कम हुआ तो भी गड़बड़. वैसे ही हर एक चीजों में अगर कुछ ज्यादा है या कुछ कम है
तो वो imbalance है. So we have to bring it balance. So कोई एनर्जी too much is there. मेरा माइंड घूमता ही रहता है, can't concentrate. नहीं, मेरा मन इतना शांत है कि एकदम आलसी टट्टू पड़ा है, वो it can't concentrate. दोनों गड़बड़ है, right? So we need little activity, we need rajas also, and at the same time, we have to reduce the tamas, we have to increase our sattva. So we need that balance. How can we do that? And for that, particular mantras are given. So particular combination. And so we have ekakshari mantra, dvakshari mantra, triyakshara mantra, 11 अक्षर के, 10 अक्षर के, द्वादश मंत्र जिसमें 12 लेटर्स है ऐसे. And then we have different mantra, and then in that we have maha mantra also. When we talk about maha mantra, किसको maha mantra कहा जाता है? जिसमें सारी एनर्जी बैलेंस की हुई है. स्कूल वाले will be very happy. हाँ, महामृत्युंजय. no, not महामृत्युंजय मंत्र. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. So combination of letter is such that we get maximum power, and it is common for all the purposes. हमारा कोई भी पर्पस हो, हमें कोई पर्पस मालूम भी नहीं हो, हमें क्या करना है, क्या चाहिए, कौन सा बड़ा है, कौन सा कम है, हमें कुछ नहीं मालूम है, ये करो और हम सब ठीक हो जाते हैं. या तो हमारे गुरुओं में मंत्र देते हैं. ज्यादातर कॉमन मंत्र ये होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. किसने यूज किया था ये? प्रहलाद ने. करेक्ट, ध्रुव प्रहलाद वो लोग ने ये किया था. अगर प्रहलाद से याद आया कि अगर अभी तक वो एनिमेशन मूवी नहीं देखा है तो प्लीज देख के आओ, नरसिम्हा का. हाउ इट वाज अमृता? नाइस मैम. गोइंग वर्थ सीइंग इट. यस राजश्री, हाँ, घर के बच्चों को लेकर के जाइएगा प्लीज, और अपने तो देख करके आइएगा, क्योंकि वो कब उस पे आएगा, नेटफ्लिक्स वगैरह पे मालूम नहीं है. इट्स नाइस टू गो देयर एंड सी इट, एंड इट्स वेरी क्यूट. जिन लोगों को नहीं है प्लीज देख करके आइएगा. आई हैव सीन इट एंड आई विल बी गोइंग वंस अगेन. अभी टाइम नहीं मिला है, बस अभी जाऊंगी. ओके, राइट. सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कौन सा सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं? श्री कृष्ण शरणम मम. करेक्ट. तो द्वादश अक्षरी होता है, 16 लेटर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग मंत्र. ये करने से क्या होता है? हमें मंत्र क्यों करना है? वो रिपीटेशन करने से क्या, उसकी एनर्जी हमें, हाँ, क्या होगा? उस मंत्र की एनर्जी प्राप्त होती है वो हमें. एनर्जी प्राप्त होती है. करेक्ट. हाँ, इट इग्नाइट्स पावर विद इन अस. ओके, वो मंत्र क्या करता है? वो पासवर्ड क्या करता है? जो पासवर्ड हम डालते हैं वो क्या करता है? It opens the file, right? It opens the whatever, things I want to do it. Correct? Exactly like that. It opens up that energy, that power, that result in me. It is like key. It is like password, which opens up that energy, ignites that energy, awakens that energy, that power, that samarthya, that siddhi in me. And so, वो कम था, वो मेरे में नहीं था, वो कैपेसिटी मेरे में नहीं थी, इसलिए गड़बड़ थी लाइफ में. राइट. धीरे धीरे वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो पावर मेरे में से आने से वो तकलीफें कम होने लगेगी. करेक्ट. हाँ, मेरी ऊर्ध्व गति होने लगेगी. हाँ, तो क्या कम हुआ? मल कम हुआ, आवरण कम हुआ, अशुद्धियां कम हुई, वीकनेसेस कम हुई. एंड जैसे ही वो वीकनेसेस वगैरह कम होने लगते हैं, तमस कम हुआ, कचरा कम हुआ, क्या बढ़ा? सत्व बढ़ा. हमारी ऊर्ध्व गति धर्म की तरफ हम लोग गए. इसीलिए उसको कहते हैं मननात् त्रायति इति मंत्र. जो मेरे मन के क्योस, कंफ्यूजन्स, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिविटी जो भी है, इम्बैलेंसेस जो भी है मेरे मन के, वृत्तियां, क्लेश, संस्कारास, अल्टीमेटली इज दैट ओनली. उससे मुझे मुक्त कराए वो मंत्र. मेरे जितने भी, मेरे दिमाग के अंदर जितने भी जाले बाजे वो इकट्ठे हुए ना, वो सारे क्योस में से जो मुझे मुक्त कराए वो मंत्र. मननात् त्रायति इति मंत्र. मेरे माइंड के क्योस में से, वृत्तिस, क्लेश, संस्कारास, ऑब्स्टेकल्स, सहबुआस, उसमें से जो मुझे मुक्त कराए. हमारे कितने ही हम सब ने पाले हुए हैं कंडीशनिंग्स, जिसको बोलते हैं, राइट. मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ,
दिस इज माई नेचर, दिस इज माई स्वभाव, मेरे को ऐसे ही चाहिए. हाउ मेनी दिस वी ऑल हैव? क्या बोलते हैं उसको, हमारे फिक्सेशंस. हाउ मेनी फिक्सेशंस, कंडीशनिंग्स वी ऑल हैव, राइट? And that is all is helping sometime. It's not that not helping, but most of the time it is binding me, it is holding me. वो सारे फिक्सेशंस में से, सारे वो क्या बोलते हैं ऑब्सेशंस में से जो हमें मुक्त कराता है वो मंत्र. एंड सो इसको संहिता भी बोलते हैं, विच ब्रिंग्स मी टुगेदर टू माई सेल्फ. या तो उसको मंत्र कहते हैं, संहिता कहते हैं. Yeah. That is the first chapter, first part of each and every Veda. So Rigveda है तो Rigveda का first part is known as mantra. It's not known as, they are the mantras. All the mantras put together, that's why it is known as mantra. That chapter को या that book को. और उसमें भी इतने सारे हैं कि मंत्र बुक्स होती है, बहुत सारे मंत्रस है अलग अलग. Then second is ब्राह्मणा. What is ब्राह्मणा? हाँ मैम, हमें मालूम है. तुम हिंदू धर्म वाले लोग हो ना, सनातनी, अपने आप को अभी तो सनातनी कहते, नया शब्द तुम लोग को मिल गया है, तो वो कहीं ना कहीं से ब्राह्मणों को तो घुसाओगे ही. तुम लोगों को तो शूद्र से, ओबीसी से प्रॉब्लम ही है, हमें मालूम है बचपन से. ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में. Did Sanatana ever has problem with Shudra? No. Who was Vedavyas, by the way? Which caste he belonged to? Both. हाँ? Shudra and Brahman. Brahman and Shudra both. या वैसे ऋषि मुनि जो होते हैं वो ब्राह्मण होना कंपलसरी था क्या राजश्री? नहीं मैम. नहीं. ऋषि भी कंपलसरीली कभी वो नहीं होते थे, ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे. यू अंडरस्टैंड? Yes मैम. वेल, तो हम उस एरा की बात करें जब ये कोई कास्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. और जो कास्ट नहीं, तुम्हारे वेद नहीं बताया है, मालूम है हमारे वेद ने बताया है. और तुम्हारे वेद ने कहा है कि वो जो शूद्र है ना, भगवान मतलब लोगों के पैर में से जो जन्मे है, वो नहीं, वो पैर से जन्मे ऐसा नहीं बताया है, वो हमारा पैर है. उनको क्यों हमारा पैर कहा है? हमारे पैर के बिना कैन वी डू एनीथिंग? हाउ वी रीच एनीवेयर? It is my legs, right? So, when we are talking about symbolically also, to reach somewhere, when we want to reach somewhere, कहीं पे पहुंचना है, तो सबसे पहले कौन चीज हमें मदद करती है? कौन सा एरिया में मदद करता है? पैर. हमारा पैर. So, Shudra is that which helps us to reach somewhere. So, Shudra is that power which is like my legs, my foundation, my grounded energy. सिर्फ दिमाग है लेकिन पैर नहीं है, हाथ नहीं है और कुछ नहीं है, वो कुछ कर सकता है क्या? कंप्लीशन उसकी लाइफ में आती है क्या? नहीं. तो अगर पैर बोलेगा कि यार मैं तो बेचारा नीचे रहता हूं, इसलिए मेरे को तो तुम लोग एकदम गिरा पड़ा मानते हो, बुद्धि अपने आप को महान समझ सकती है क्या? बुद्धि या तो हायर एस्पेक्ट्स विल बी नथिंग विदाउट द लोअर एस्पेक्ट्स. They are the foundation. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहस्रार का होता है कि मूलाधार का होता है भाई? अगर मूलाधार ठीक नहीं है तो सहस्रार तक जिंदगी में नहीं पहुंचोगे. जिंदगी में क्या, अनेक जन्मों तक नहीं पहुंचोगे. इसलिए वो वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्थान किसको दिया है? जिसकी पूजा सबसे पहले करनी है, गणेश को. और गणेश के क्वालिटीज दी हुई है कि ऐसी ऐसी क्वालिटी होते हैं, उसी को गणेश कहते हैं. दे आर द बेस्ट लीडर, रोल मॉडल्स. और अगर हम मूलाधार मतलब वो बेसिक जो भी हमारा फाउंडेशन है उससे साधना शुरू करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? रिद्धि एंड सिद्धि दोनों. अगर सिद्धि तक पहुंचना है तो रिद्धि जरूरत है. और रिद्धि कहां से आती है भाई? इहलोक से, द फाउंडेशन से. एंड सो हु आर शूद्रस? द फाउंडेशन ऑफ द होल सोसाइटी. इट वॉज नेवर शूद्र मीन्स हम लोगों को तो पहले है ना हिंदी या संस्कृत बराबर शब्द ही आता नहीं. शूद्र है, क्षुद्र नहीं है, क्षु, रक्षा का क्ष नहीं है उसमें. क्षुद्र नहीं है. क्षुद्र का मीनिंग होता है नगण्य, तिरस्कृत और लोअर कैटेगरी का. शूद्र इज नेवर लोअर कैटेगरी.
We have to understand this. Why we are, talking about it once again in detail? Because when we are unapologetically clear about things and we are able to talk about it, understand first and talk about it, nobody will keep on putting aarop on us, blame on us. Right now, why we are not feeling good about ourselves? Because we feel कि अरे हम लोग तो पागल ही, हम लोग तो एकदम बकवासी थे, हमारी सारी सिस्टम गड़बड़, अरे हमारी the only system which is the best. किसको लोग पत्थर ज्यादा मारते हैं बॉस? किसको सबसे पहले सजा करने की लोग हिम्मत करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं? किसको? जिसको कुछ नहीं आता है उसको, जो कुछ नहीं करता है उसको, जो कुछ बदल नहीं ला सकता है उसको, या जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जिससे उन लोगों को क्या होता है? प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम होता है? उन लोग से थ्रेट है, जिससे थ्रेट होता है ना उसका ही गला पहले कटता है। जो गर्दन उठ करके चलती है उसकी गर्दन काटी जाती है, पहले काटने की कोशिश की जाती है, राइट? कोई भी धर्म पे कहीं कोई गए हैं क्या किसी को मारने के लिए? नहीं गए हैं, लेकिन वो सारे सिस्टम्स एक ही बंदे को क्यों मारने आए हैं? सालों से मतलब नॉट ओनली 25-50 सालों से, हजारों सालों से ये चला है, करेक्ट? क्यों? जो बेस्ट है उसी को तकलीफ आती है, राइट? जो कुछ करता ही नहीं है, कोई कुछ करने के लायक भी नहीं है, उसको कभी कोई तकलीफ आती है क्या? क्लास में वो जो एकदम मिडल वो है, कुछ भी नहीं करता है, उसको कोई कुछ कहता है क्या? उसका अस्तित्व नहीं होने के बराबर ही है, राइट? लेकिन जिसका अस्तित्व होने के लायक होता है वो, करेक्ट, उस पे सबकी नजर रहती है, राइट? तो वो हमारी वैदिक परंपरा है, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो दिए वो मंत्र, कोई भी कहां पे भी कैसे भी कोई भी हाल में वो मंत्र का इस्तेमाल करे, रेगुलरली उसकी साधना करे, कोई भी वे में, विल डेफिनेटली गो हायर। और अगर वो हायर जाएगा तो अपने क्या करेंगे? जिसको काम नहीं करना होता है, निकम्मे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? यूजलेस लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जो आगे बढ़ रहा है ना, क्रिटिसाइज करेंगे, और जो आगे बढ़ रहा है क्या करेंगे? उसकी टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे ना, क्रैब मेंटल, क्रैब मेंटल। क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं हो रहे हैं, उसकी खुद की लाइन बड़ी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, उनमें उसने ताकत ही नहीं, उसमें उतनी समझ नहीं है, उसमें उतनी शक्ति नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? दूसरे की लाइन, दूसरे की शक्ति कम करने की कोशिश पहले करेंगे। अगर हम लोगों को ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, तो पहले सोचो कि क्यों? अगर कहीं ना कहीं हम बदलाव लाने की या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, करेक्ट, तो घर में, करेक्ट, हाँ, जो काम मैंने गलत किया भी नहीं है ना, उसके लिए भी मेरे को पॉइंट आउट किया जाएगा, राइट? क्यों? दे कैन नॉट टेक इट easily, they cannot digest our rise easily, correct? So don't worry, don't bother. पहले तो do not waste your energy in argument or telling them ना, तुम तुम्हारा जो भी करना है करते रहो ना, we will, first we have to develop indifference. indifference, तुम्हें जो बोलना है बोलते रहो ना हमारे लिए। पहले तो हम वो कब कर सकते हैं, कब हम लोग विचलित नहीं होंगे? when we know what I'm doing is not wrong, what I'm doing is right. I have right to do, to follow what makes me right, contented, on path. वो मुझे अलाउड है कि नहीं है? वो मेरा हक है कि नहीं है? Correct. We all have, as a mother, as a father, as a teacher, we are supposed to do few things. If you are following that according to rules and regulations, according to the path, according to the systems which is needed for you to follow, if you are following, then rest at peace. दुनिया भले ना ऊपर की नीचे हो जाए, हमें क्या? करेक्ट? फॉर दिस, ये हमें, ये कंटेनमेंट, ये समझ हमें आए, इसके लिए वी मस्ट नो आई एम राइट, करेक्ट? उसके लिए वी मस्ट नो दिस। और इसलिए ही हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो वेद है, that is the pioneer foundation base for the whole knowledge, universal knowledge, each and every knowledge. फिर वो बाद में बहुत डिवीजन आया,
ईस्टर्न नॉलेज एंड वेस्टर्न नॉलेज, लेकिन वो सबका माई बाप कौन? एक ही, वेद, नथिंग एल्स. एंड वी मस्ट नो दिस, वी मस्ट हैव फेथ इन दिस, we must have complete confidence in it. पूरा विश्वास, भरोसा होना चाहिए उसके ऊपर. That's what विवेकानंद said ना, कि अगर वेद कहेंगे कि अग्नि ठंडा है तो मैं मानूंगा. क्यों? क्योंकि वेद ने कहा है, मेरे वेद सच ही बोलते, कभी भी गलत नहीं बोलते, इसलिए मुझे भरोसा भी है कि मेरा वेद ऐसे कहेगा ही नहीं कि अग्नि ठंडा है. हम लोगों को तो सबसे क्या है, तुम्हारे वेद में लिखा है, क्या लिखा है? हिंसा करो, यज्ञ में सब लोगों की सेक्रीफाइस देते, वेद में लिखा है. तू देखने गया है क्या? एक दफे ओरिजिन पढ़ो. नहीं, तुम्हारे मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्रियों को ऐसा है, उसको लोअर माना गया है, शूद्र को लोअर माना गया है. पढ़ा है क्या तूने? पढ़ा है क्या तूने? तूने ऐसे उड़ाया है, तूने ऐसे फाड़ा है. एक दफे भाई खोल के देख, फाड़ने के बदले में तेरे को अक्ल आ जाएगी. एक दफे खोल के देख, एक दफे एक लाइन भी पढ़ के देख. हमारी हर एक लाइन इज कंप्लीट. पूर्णमदा पूर्णमिदम, एवरीथिंग इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. कोई एक लाइन को पकड़ कर उसके सहारे चल आगे, फिर तू देख, तेरी मुक्ति 101% हो जाएगी. फिर अभी क्या इतना सुन सुन करके क्या होता है? हमें भी क्या लगता है? खुद पे भरोसा नहीं रहता है, हमारे वेदों पे भरोसा नहीं रहता है. हाँ, कहीं होगा तो. और फिर हमें भी वही पिटफॉल्स दिखने लगते हैं. There is no pitfalls. We should have this faith. हमारे फोरफादर्स कभी गलत नहीं कहते, नहीं कहा है. उन्होंने जो भी कहा है सत्य है. सत्य means ever true. And that's why we should have faith in that. If you have faith in that, then nobody will be able to do anything to us. And then they will get some inspiration from us. And then they will also go higher. वो लोगों को भी आगे जाने के लिए हम सहारा बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें किसका सहारा है? जो खुद अच्युत है, जो खुद हिलता डुलता नहीं है, जो खुद सॉलिड है, सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञ है. राइट? एंड दैट इज व्हाट अवर वेद इज. एंड वो वेद को हम समझ सके, हम अपना सके, हम प्रैक्टिस कर सके, इसलिए किसने ये भगीरथ काम किया? वेद व्यास जी ने. दैट्स व्हाई वी नो हिम, वेद व्यास, जिन्होंने वेद का व्यापक किया, वेद को व्यास किया, वेद को एक्सपांड किया, सब तक पहुंचाया. करेक्ट? एंड सो फर्स्ट इज मंत्र एंड ब्राह्मण. देन what is the second chapter or second part of it? First is mantra or samhita. Sorry, what is the second part of it? Brahmana. What is Brahmana? Second हिस्सा हर एक वेद का. second हिस्सा is what? ऋग्वेद का second हिस्सा, सामवेद का second हिस्सा. What is the second chapter of it? ब्राह्मण ग्रंथ. What is ब्राह्मण ग्रंथ? जो मंत्र है, वो मंत्र को कैसे हमें बोलने का, या वो मंत्र की शक्ति को कैसे इग्नाइट करने का, वो मंत्र को मेरे जीवन में कैसे यूज करने का, जो पासवर्ड जो है उसको मैं कैसे डालूं. पासवर्ड है रक्षा, और आपने डाला रक्षा, नहीं मैम नहीं खुलता है. फिर हम लोग पूछते हैं आर कैपिटल है कि स्मॉल है, बीच में कोई स्पेस है कि नहीं है, कोई फुल स्टॉप है कि नहीं है, कोई हाइफन है कि नहीं है. ऑल दैट मैटर्स और नॉट? Yes. Correct? Exactly, that is what is Brahmana. All the rituals, how to use this mantra, how to make this mantra come to my life. All the rituals are given. ए कैसे लिखने? ए हमें मालूम है, लेकिन ए लिखने का कैसे? तो पहले हाफ सर्कल होता है, फिर लाइन होती है. तो देयर इज अ रिचुअल. ए ऐसे ही लिख सकते हैं. मैं बी लिखूं ए के बदले में तो चलता है क्या? मैं ए के बदले में पासवर्ड में बी टाइप करूंगी, क्या फर्क पड़ता है? 19-20 का तो फर्क है. चलता है क्या? नहीं चलता है. राइट? सेम टू सेम इन मंत्र. इफ आई से इन अ पर्टिकुलर वे, हमारे वैदिक ऋषि है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे हमने सुना है, हम लोग में से कोई काफी लोग लकी है जिन लोगों ने कभी कभी बोला है, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो शांति मंत्र तो बोले ही, वो सारे वैदिक है. ओम पूर्णमदा, अथवा तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु. ओके, तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ऐसे बोलेंगे तो कोई सुखी होगा क्या? तू ही सुखी नहीं होगा भाई. करेक्ट?
सो बोलने में एक सिस्टम होती है, राइट, है ना। और अगर आपने सुना होगा तो वैदिक मंत्र बोलते हैं तो वो लोग ऐसे हाथ ऐसे करते हैं, उसका मतलब क्या, उस हिसाब से उसकी ताकत बढ़ती है, उस हिसाब से वो बोलते हैं। हर एक का एक लय होता है, एक ताल होता है, एक सुर होता है, राइट। बाय द वे, लय ताल सुर किसने दिया है? वेद, वेदों वेद। को लय तार ऐसे बोलना है, वो किसने दिया है? वो शिव जी का शिष्य था, और शिव जी से सीख करके उसने सारे वेदों को वो ताल दिया है, रावण आग रावण दिया है, रावण ने दिया है, रावण ने वो काम किया, करेक्ट। हाँ, सो मंत्र को हमारे जीवन में कैसे यूज करने का, वो शक्ति हमारे में कैसे इग्नाइट करने की, उसकी जो सिस्टम है, उसकी जो कर्मकांड है, उसके जो रिचुअल्स है, उसकी जो प्रोसेसेस है, उसकी जो टेक्निक्स है, क्रियाएं है, वो किसमें दी गई है? ब्राह्मण ग्रंथ में। तो शिव का मंत्र है तो शिव की शक्ति मेरे में कैसे आए? शक्ति का मंत्र है, वो शक्ति की शक्ति मेरे में कैसे आए? देवी की शक्ति मेरे में कैसे आए? मुझे बुद्धि की शक्ति चाहिए तो बुद्धि की शक्ति मेरे में कैसे आए? मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो मुझे पाना है, what I want to attain, how will I get that power, that energy, that सामर्थ्य, that सिद्धि? उसकी जो भी सिस्टम है, वो सारी सिस्टम किसमें दी गई है? ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ इज व्हाट? क्रियाकांड, कर्मकांड। क्रियाकांड कर्मकांड मतलब विच दर्शन? विच दर्शन? षड दर्शन में से वो कौन से? नास्तिक दर्शन ऑफकोर्स नहीं, वो बाकी के 3 निकल गए, बाकी आगे के 3 है। उसमें से क्रियाकांड कर्मकांड किस में दिया गया है? वेदांत। वेदांत। वेदांत में। वेदांत इज वेदांत, वेदांत इज वेदों का अंत में, वो इससे सारा वो ज्ञान कांड है वेदांत। तो वेदांत ज्ञान कांड, उपनिषद अगर मीमांसा, ज्ञान कांड है, मीमांसा में मीमांसा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा जिसको बोलते हैं वो। तो पूर्व मीमांसा में कितने हिस्से आते हैं? उत्तर मीमांसा किसको कहते हैं? वेदांत को। वेदांत मतलब क्या? उपनिषद। तो वेदों के 4 पार्ट है, राइट। मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड वेदांत मतलब उपनिषद, वो लास्ट हिस्सा हुआ। तो वेदांत अगर लास्ट हिस्सा है, उत्तर मीमांसा लास्ट हिस्सा है, तो पूर्व मीमांसा कौन से हुए? आगे के तीनों पूर्व मीमांसा है। क्यों? क्योंकि मंत्र, वो मंत्र को कैसे यूज करने का, वो ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण ग्रंथ में जो रिचुअल्स है, वो रिचुअल्स को मैं 1 to 1 मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, वो है आरण्यक ग्रंथ। सो मंत्र, ब्राह्मण एंड आरण्यक, all the 3 comes in पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा इज उपनिषद, वेद, वेदांत, वेद का अंत, 4th पार्ट। Got it? So what is Brahmana Granth? Rituals, karma kand, all the systems which is given. How I can practice it? How can I ignite that power in me? And so what is Aranyak? तो सेम टू सेम हो गया ना। वैसे मंत्र को ही कैसे यूज करने का वो ब्राह्मण में दिया है, और जो मैं मंत्र को मेरे जीवन में लाना है, तो वैसे ही वो पूजा की सारी पद्धतियां और वो जो सब कुछ है वो दिया है आरण्यक में। मतलब ऑल द वर्शिपिंग सिस्टम्स एट मेंटल लेवल। उपासना कैसे की जाए? व्हाट इज उपासना? व्हाट इज उपनिषद का मीनिंग क्या है? उपनिषद, निषद के पास, हाँ, तो सिट किया द गुरु, द सेम गुरु वे के पास। उपवास या तो उपासना ऑल्सो मीन्स उपासना। उपासना, उप मीन्स नियर, आसना मीन्स टू सिट। किसके पास बैठने का? जो साधना मुझे करनी है, वो मंत्र के साथ, वो विचार के साथ, या तो वो गुरु के साथ जो मुझे सिखा रहे हैं, उसके पास बैठ करके, उसके साथ रह करके हमें ये प्रैक्टिस करना है। एंड दैट इज व्हाट द ब्राह्मण ग्रंथ से लेकर के फिर आरण्यक ग्रंथ में आता है। आरण्यक ग्रंथ इज अ स्टेप हायर देन द ब्राह्मण ग्रंथ। All the systems are given in that when I sit with my teacher, when I sit with my
हम लोग क्लास में सब कुछ सीखते हैं, ओके। फिर अगर हम लोग थोड़े स्कूल में, अब फिर कॉलेज वॉलेज में थोड़ा कम हो गया, खैर कॉलेज में भी रहा लेकिन इतना नहीं रहा, और अभी तो हम लोग बिल्कुल वो कंसल्ट नहीं करते, लेकिन आज भी काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो योगा क्लास में जाते हैं लेकिन घर पे एक टीचर को बुलाते हैं, करेक्ट, 1-to-1 करते हैं, करेक्ट। काफी लोग ऐसे हैं कि वो एक क्लास तो अपने टीचर के साथ, सिर्फ मैं और मेरे टीचर हो, ऐसे करेंगे। दैट इज व्हाट द आरण्यक इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज व्हाट लेटर ऑन इज उपनिषद इज ऑल्सो ऑल अबाउट। सो व्हाट इज आरण्यक? कि जो भी सारी उपासना पद्धतियां ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है, वो सब में से मेरे लिए पर्सनली, मेरे पर्टिकुलर छोटे से पर्पस के लिए, हेतु के लिए मुझे क्या करना है? I consult my teacher. No private coaching. When Muhammad cannot go to mountain, mountain comes to Muhammad. The teacher is coming to you and personally guiding. And so how personally they are guiding us? कि तेरा ये प्लस है, तेरा ये माइनस है, तू ये नहीं कर सकता, जाने दे, जाने, इसमें ऐसे लिखा है, भले ही इसमें लिखा है, लेकिन तू ऐसे किया कर, करेक्ट। उसमें थोड़ा चेंजेस करके पर्सनली मुझे फिट होए, सूट होए, वैसे करके दे। हम लोग ने कभी ऐसे सुना है कि बहुत सारे लोग टाइम है, बहुत सारे लोग मैं ऐसा नहीं कहती ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वो कोई औषधि वगैरह लेते हैं, and then when you are in that euphoric world, in that time they are most sane, तभी उनका दिमाग सही होता है, करेक्ट। खैर, हमारे पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है कि समाधि अवस्था में हम लोग मंत्र से जा सकते हैं, औषधि से भी जा सकते हैं, एंड इसीलिए जो लोग एकदम हिमालय में इधर उधर रहते हैं, या तो बहुत ये तंत्र की बहुत साधना करते हैं, वो लोग क्या अलाउड है उनको लेने का, और वो लोग लेते भी है। जो तंत्र मार्ग में है तो हम लोगों को हाँ सुना हुआ है, वो 5 मकार अलाउड है उनको, हाँ, और उसमें से काफी लोग है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कभी कभी अफीम लिया करते हैं, ऐसे सुना है हम लोग ने, गांजा लेते हैं जो लोग, वो हम लोग बोलते हैं कि नागा साधु होते हैं या तो तंत्र मार्ग में है, सो दे आर टेकिंग द अफीम, करेक्ट। और उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है, उन लोगों को एक्चुअली कोई असर भी नहीं करता, उनको कोई नुकसान भी नहीं करता है, वाई दे आर अलाउड? ये तो गलत है भाई, वाम मार्ग है। यस, फॉर कॉमन मैन इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। लेकिन वो कहाँ रहते हैं, कहाँ है, सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ, और फिर भी वही साधना पे टिके रहना, विच इज नॉट इजी। तो फिर आजू बाजू से कोई ना कोई चीज आएगी और लोग योर हो जाएंगे, तो आजू बाजू कोई चीज आई और उसके पीछे भागने लगे, तो ऐसे नहीं हो, इसलिए बाकी का दिमाग सब बंद। उसके लिए कभी कभी ऐसा अलाउड है, और वो कोई और नहीं, वो गुरु अलाउड करता है कि हाँ भाई तुझे अलाउड है। क्यों? क्योंकि तू आगे नहीं जा पा, एक दफे तू एक्सपीरियंस कर लेगा ना, देन यू नो हाउ टू रीच देयर। हम लोग जब ऑफलाइन क्लास में मिलते थे ना, तो धनुरासन में हम लोग ऐसे जब करेंगे तब करेंगे, या तो ये अभी तो खैर सब लोग है ना कपालभाति में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि डिप्लोमा में ऐसे कराते वैसे कराते, और अभी धीरे धीरे सब जगह पे फेमस होने लगा है कि भाई कपालभाति जोर जोर से नहीं करनी है, नहीं तो नाक खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वो जमाने की बात कर रही हूँ, मैं 2000 ये 90s की बात कर रही हूँ, जब मैंने वहां पे सिखाना शुरू किया था 2004 और वो में, और जब मैं सीखती तब कपालभाति एकदम अलग ही लोग करते थे, एकदम ही अलग करते थे। और फिर मैं आई रिमेम्बर कि ऑफलाइन क्लास में या तो पर्सनल क्लास में ना, मैं उन लोग का हाथ लेती थी, या मेरे पेट पे रखती थी, या मेरा हाथ उन लोग के पेट पे रखती थी, उनके हाथ के साथ में, और फिर बोलती हूँ कि फील, एक मेरे पे, एक पे, नाउ यू फील, एंड व्हेन दे फील द मूवमेंट्स एंड दे रियलाइज, ओ मैं बात कर रही थी, उनके पैर ही नहीं उठते, और एक दफे हम लोग सपोर्ट करके उठा दिए, एंड देन ओ यस, पेट पे यहाँ पे लगा, ओ बैक पे यहाँ पे, यस यू हैव टू रीच दिस लेवल। So then once they feel it, once they experience it, then they get into it without any support. इसलिए वो गुरु सपोर्ट देता है। वो कौन समझेगा? वो गुरु ही समझेगा, और गुरु नोज कितनी मात्रा में देना है, कितनी मात्रा में प्रेशर देना है, कितनी मात्रा में इधर उधर करना है, राइट। अगर वो ट्रेंड बंदा नहीं है तो, और हम लोग ने देखा है जो ट्रेन बंदा नहीं होता है, बोलता है तू करना तू करना, और राम बोलो भाई राम भी हो गया, या तो पागल भी हुए लोग। आई हैव ट्रीटेड पीपल, तब से है ना हम लोग है ना, मैं एज फार एज पॉसिबल
वो अभी कंपल्सरीली थोड़ा बहुत वो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कहीं से भी सब जगह से पढ़ के आए, इसलिए आई रिपीट इट, सो राइट मीनिंग विल गो टू देम। अदरवाइज कुंडलिनी साधना सबको अलाउड थी क्या? अब तो हर एक इंस्टीट्यूट ने कुंडलिनी साधना का क्लास चालू किया। इट इज नॉट अलाउड। अरे भाई, तुमने गणेश साधना की नहीं है जिंदगी में, गणेश से कनेक्ट नहीं हुए हो और कुंडली के ऊपर जाने का है। नहीं नहीं, वो बोलते रहने से करते रहने से हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए वी ऑलवेज नीडेड इन ऑल दैट गुह्य या तो गुप्त साधना, ये जो हायर लेवल की साधना होती है उसके लिए इट इज ऑलवेज इंसिस्टेड वी नीड टू हैव गुरु। करेक्ट? यस, दैट इज व्हाट आरण्यक, कि ये सब जो टेक्निक्स है ना, जो बताई हुई है ना ब्राह्मण ग्रंथ में, तो सब टाइम मत मार। तेरे को जो करनी है पहले कंसल्ट योर गुरु, सिट विथ योर गुरु, एंड गुरु जो तुझे बोले वही करेगा तू। तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, नहीं लेकिन मैं ये करूँ तो, मैम मैं ये आसन करूँ तो, और ये आसन मैं ऐसे करूँ तो, नो, यू हैव नो राइट। What teacher tells, I mean, what guru tells, that only we are supposed to do, that way only we are supposed to do. Why? Why? Because then the responsibility is of gurus. Because he knows how to control it, how to manage it. Otherwise, we may suffer. And that is what is Aranyak. And the fourth part, as we all know, is Vedanta Veda ka last part. Last part क्या होता है? Concluding part क्या होता है? Concluding part में always पूरे आगे की पूरी जो भी बुक गई है 5000 पेजेस की, 50,000 पेजेस की, वो सबका क्या होता है? वहां पे सार होता है, Conclusion. इसेंस होता है, वो सारे उसका निचोड़ होता है। दैट इज व्हाट इज उपनिषद सार, essence of complete Veda. And so in the mantra, Brahman and Aranyak, we learn what and how, what to do, how to do. And in Upanishad, we learn why to do. Why this knowledge? What is the purpose of this knowledge? What is the ultimate essence of this knowledge? That is what is Upanishad. Very smartly, correctly, perfectly. In each and every Veda, Vedavyasji divided this knowledge, put it into compartments so that we all can use. Now, do I have to go through Rig Ved, Samved, Yajurved or Atharva Ved? Music is my sadhana. उसके द्वारा मुझे आगे जाना है. In that, how many types of music, how many types of systems are there? Innumerable. So सामवेद में से कोई एक पर्टिकुलर मंत्र, कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक मेरे गुरु के द्वारा चूज करके do the sadhana. Rest of the things do I need? हजारों रास्ते हैं बोरीवली तक पहुंचने के लिए. Do I have to try all the possible paths? और थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, थोड़ा ये, मैं कभी भी बोरीवली पहुंचूंगी लाइफ में? नहीं. इसलिए जो पाथ चूज किया है, कौन सा पाथ चूज किया है? यस, चूज करने से पहले यू मस्ट नो. फ्लाइट लेके जाऊं, पूरी वाली फ्लाइट लेके जा सकते हैं, लैंड कहां करेंगे भाई? करेक्ट? सो दैट वे व्हाट इज सूटेबल टू मी, व्हाट इज पॉसिबल फॉर मी, मेरी ताकत क्या है? अगर मुझे ट्रेन का भाड़ा भरने का पैसा नहीं है और मैं फ्लाइट का सोच सकती हूँ वे, करेक्ट? यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज माई कैपेसिटी? बट I have right to reach बोरीवली और नॉट. कम पैसे है, कम अक्कल है, कम बुद्धि है, कम ताकत है, कुछ भी कम है, लेकिन मेरा हक है कि नहीं बोरीवली पहुंचने का? हाँ है, मेरा हक है दैट मैं स्वराज्य तक पहुंचू. मेरा हक है. इट्स माई बर्थ राइट टू रीच द मोक्ष. हाउ? जो भी मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, जो भी मेरी ताकत है उसके हिसाब से, जो भी अवेलेबल है मुझ में, मेरे साथ, उसके हिसाब से. And so that's how I read. And for that, who guides? Guru. Guru guides me through the scriptures. And in that, all the gurus, who is the highest one? Yes, of course, Jagat Guru Shri Krishna, of course, Shiva. But, you know, Shiva और Jagat Guru Krishna को भी समझाने वाला कौन? वेद हमारे जीवन में लाने वाले कौन? वेद व्यास. And Veda Vyasa has divided this, 4 chapters, 4 Vedas, complete Vedic knowledge into 4 Veda, complete Vedic knowledge of 4 Veda into 4 chapters, Mantra Samhita, Brahmana, Aranyak, and Upanishad. After that, what?
He stopped there. तो इतना सिखाने के बाद भी वो स्टूडेंट पूछते ही है ना, लेकिन मैं मेरे नहीं समझा। अरे भाई 100 दफे बोली हूं भाई मैं, करेक्ट होते हैं कि नहीं? हमारे सबके भी ऐसे कोई स्टूडेंट निकलेंगे, है ना? हमारे बच्चे ऐसे निकलेंगे। इतना करने के बाद में अरे अर्जुन ने खुद ने बोला था कि भाई उस वक्त भगवत गीता सुनाया, वापस सुनाओ ना। कृष्ण जी ने बोला कि अभी नहीं, अभी यू लिव। एंड देन ही टुक हिम टू समवेयर एंड देयर ही लर्नड इट वंस अगेन इन अ डिफरेंट वे। करेक्ट? पहले ऐसे कहा जाता था, दूरदर्शन नहीं, सॉरी, आकाशवाणी बार बार रिपीट नहीं करेगा उसको आकाशवाणी नहीं कहते हैं। करेक्ट? आकाशवाणी एक ही दफे होती है, एक ही चीज के लिए होती है। एनीवे, सो he did it, but after that, many were there who were not been able to digest these ideas of given in Veda, क्योंकि वेदा में सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई करके उपनिषद दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब लोग बोले इतने सारे हैं, 4 वेद, उसके 4 हिस्से, उसमें से कैसे ढूंढने का, क्या क्या कैसे करे। उन्होंने बोला ठीक है, एक बुक देता हूँ। कौन सी बुक दी थी उन्होंने? एक ही बुक, पूरी वेद पे, पूरे का पूरा वेद उसके अंदर लिखा था। कौन सी ये बुक लिखा है? कौन सी है वो बुक? सिंगल बुक, ही हैज रिटन इट। श्रीमद् भगवत गीता। नो, वन बुक ही हैज रिटन। उसमें कंप्लीट वेद है। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद कहलाता है। ब्रह्मसूत्र। 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 वेदों में किसकी बात हुई है? ब्रह्म की बात हुई है। सारे ब्रह्म की बात, जो भी बात हुई है, सारी की सारी बात, एवरीथिंग ही हैज रिटन इन सूत्र फॉर्म। उसको वेद सूत्र कहना चाहिए ना। लेकिन वेद किसके बारे में है? वेद मीन्स व्हाट? वेद मीन्स ब्रह्मन। करेक्ट? इसलिए वो ब्रह्म सूत्र में दिया। तो ही सिस्टमेटाइज वेद, ही कंपार्टमेंटलाइज वेद, ही डिवाइडेड वेद इनटू 4 पार्ट्स। नॉट ओनली दैट, ही हैज रिटन वन सिंगल बुक ऑन वेद, which is nothing else but Veda in itself, complete Veda, that is ब्रह्म सूत्र बुक। लेकिन उन्होंने बोला कि यार बहुत पोटेंट है। हमें मालूम है कि प्रोटीन है ना, वॉट एवर, आजकल वो बहुत पागल है। मेरे ही घर में है मेरा बेटा, नहीं प्रोटीन। अरे भाई, मैं जो खाती हूँ इतना इनफ है मेरे लिए। दाल चावल सब्जी रोटी में से मेरे को जितना जरूरी है प्रोटीन, वो मुझे मिल जाता है। मेरे को एग्स भी खाने की जरूरत नहीं है, या तो प्रोटीन शेक भी पीने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल वो चल रहा है ना, वो थोड़ी दिन टिकेगा। हाँ, 6 महीने से ला करके प्रोटीन शेक पड़ा है। जैसे उसकी मैं राह देख रही हूँ, एंड ऑफ सितंबर में उसकी ड्यू डेट वो खत्म होती है, फिर फेंकूंगी। करेक्ट? एनीवे, सो वो सिर्फ प्रोटीन, अगर कोई बोलता है कि प्रोटीन खाने से पूरी ताकत आ जाती है, तो सिर्फ हम 1 चम्मच प्रोटीन खा लेंगे, कैन वी सर्वाइव? कैन वी फील सेटिस्फाइड? कैन वी फील हैप्पी, बैलेंस्ड? वी कैन नॉट। करेक्ट? एंड ये बहुत पोटेंट है, बहुत ही पोटेंट है। लेकिन वो पोटेंट डाइजेस्ट करने की भी तो ताकत होनी चाहिए कि नहीं? एक्चुअल फॉर्म में अगर हम लोग कैल्शियम लेंगे तो हमारा शरीर वो ग्रास्प कर लेगा। वो आजकल वो जो बड़ी बड़ी कैल्शियम की गोलियां वगैरह हमें देता है और हम खाते हैं, उसमें से कितना डाइजेस्ट होता है, कितना एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में? कितना परसेंट? 2 या 3%? नॉट इवन दैट मच, राइट? नॉट इवन 10%, राइट? बाकी का सब कचरे में चला जाता है। यू अंडरस्टैंड? इसलिए इतना पोटेंट डायरेक्टली वी कैन नॉट डाइजेस्ट। इसलिए ब्रह्मसूत्र हमारे जैसे लोगों को उपनिषद भी नहीं समझ में आता है। ब्रह्मसूत्र कहाँ समझ आया? ब्रह्मसूत्र नहीं समझ में आया, उपनिषद वगैरह में सिस्टमेटाइज किया, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए राजेंद्र जी एक बुक दिया, और वो कौन सी बुक दी उन्होंने? भगवत गीता। भगवत गीता दी उन्होंने। और वो उन्होंने किसमें इंक्लूड की? इतिहास ग्रंथ महाभारत में। क्यों? क्योंकि पूरी स्टोरी भी है, और हमें मालूम है कि केओस क्या होता है जीवन में, प्लस क्या है, माइनस क्या है, अच्छे गुण, सत्व गुण क्या है पांडवों में जो है, फिर भी वो तकलीफ में थे, राइट? क्यों? क्योंकि टू मच ऑफ सत्व। तमस गुण क्या है? टू मच ऑफ नेगेटिविटी। दुर्योधन वगैरह में थे, कौरवों में थी। दोनों वर बैलेंस्ड? नो, ओनली कृष्ण वाज बैलेंस्ड। क्यों? बिकॉज ही वाज एबल टू मैनेज, एंड सो ही हैज शोड दिस that we need to have the balance. How we can bring the balance? Correct? And in that, so when he has shown this itihas, means thus it has happened कि अच्छे लोग also can go through up and down, and that's why only sattva we cannot gel with. We need sattva, rajas and tamas, तीनों का combination. tamas ज्यादा हो तो भी we cannot manage. There we need the balance of sattva. And so he has shown that, and so in Itihas Grantha he has given Bhagavad Gita.
So when we are talking about the main scriptures, हमारे मेन शास्त्र वेद, या तो वेद ही जिसमें अलग फॉर्म में है, वो कौन से है 3? ब्रह्मसूत्र, Upanishad, fourth chapter of all the Veda. So how many, whatever Upanishad, कुछ कोई कहते हैं 18 है, कोई बोलते हैं 11 है, कोई बोलते हैं 25 है. क्यों अलग अलग है? वो उसका सब डिविजन अगर किसी ने किया है तो वैसे करके, बराबर. हाँ, तो हर एक पहले तो 4 वेद है, तो 4 उपनिषद तो हुए ही हुए, और हर एक उपनिषद में अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग लेवल्स है. हाँ, तो 4 के 16 तो हो ही जाते हैं ना. पॉसिबल है कि नहीं है? तो कोई कहते हैं 21 है, कोई कहते हैं 108 उपनिषद है. एनीवे, जितने भी उपनिषद है वो सारे उपनिषद, फर्स्ट वन इज ब्रह्मसूत्र, सेकेंड इज ऑल द उपनिषद्स, and third is Bhagavad Gita. They all these 3 are known as what? Veda in itself, Vedatrayi. Upanishad in itself. Why Upanishad in itself? Because वो वेद का सार है. ब्रह्मसूत्र भी वेद का सार है, उपनिषद भी वेद का सार है, भगवद गीता भी वेद का सार है. So all of them are Upanishad and they all are known as Shruti. डायरेक्ट वेद है, इसलिए they are known as Shruti, not स्मृति. स्मृति बाद में याद करके लिखा गया है वो. ये तो ओरिजिनल जो स्रोत है उसको कहते हैं श्रुति. सो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इसलिए हम लोग कभी उपनिषद नहीं लिखते, उपनिषद्स लिखते, उपनिषदों, उपनिषद्स, एंड देन भगवद गीता. दिस 3 are known as what? They are 3, right? त्रिपुटी है. हाँ, वेदत्रयी. वेरी नाइस. आई एम हैप्पी वेदत्रयी शब्द याद रखा, क्योंकि अदरवाइज हम लोग कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे? प्रस्थानत्रयी. लेकिन मैम आपने क्वेश्चन में उसको वेदत्रयी कहा तो चीटिंग किया था हमारे साथ, हमारे आपके साथ या तो एडवांस के साथ में, लेकिन आप तक पहुंच गया है. आई एम हैप्पी. सो वेदत्रयी, इसको वेदत्रयी कहते हैं, या तो प्रस्थानत्रयी. प्रस्थान मतलब हायर स्थान, प्रस्थान, स्थान मतलब वो लेवल है कौन सा? प्रगति. प्र मीन्स हायर गति, राइट? वैसे हायर स्थान किसका है? ये 3 इसका है, 3 श्रुति का है. फिर उसके बाद में बस अभी रेस्ट, बहुत हो गया ऐसे. फिर वेद व्यास जी रेस्ट किए क्या? आज भी वो रेस्ट नहीं किए बॉस, आज भी वो कार्यरत है हमारे पीछे. सो ये सब देने के बाद में उन्होंने क्या किया? वो आराम से बैठे थे? नहीं. ही वॉज फीलिंग कि इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी, वो हम लोगों को आदत हो जाती है ना, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई देते हैं और सिंपल करके देना. Spoon अहमदाबाद के feeding. कोई है इधर? अहमदाबाद के कोई है इधर? अहमदाबाद से कोई है इधर? हाँ या ना, जल्दी बोलो. हमारे अहमदाबादी है ना, बहुत फेमस है आजकल. फिर थोड़ा अहमदाबाद से कनेक्शन बढ़ा है ना इसलिए. और अहमदाबादी का कनेक्शन है. अगर उसको हम लोग बोलेंगे ना कि 1000 रुपए का है तो 500 में देना. हम कहेंगे जा, बहुत ककड़ाहट करे ना, तो जा 250 में लेके जा, तो बोले 125 में दे, मतलब कितना हुआ उसे आधा, उतने में देना. 100 में देना. हम बोलेंगे कि जा भाई ले जा, तो बोले 50 में देना. हम बोले जा ले जा भाई, बोले 25 में देना. हम बोले ले जा, जा मुफ्त में ले जा, तो बोले 2 देना, 2 देना. तो हमें जो अलाउ करते हैं ना उससे हम और नीचे आते हैं, राइट? हम इतना तो पढ़ना पड़ेगा. नहीं, इसमें से ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा क्या? हमें स्कूल में ऐसा होता था ना कि 20 चैप्टर्स होते हैं, उसमें से हमें 2-3 चैप्टर तो नहीं कराते, और 2-3 चैप्टर में से आधा हिस्सा मना कर देते कि ये नहीं करोगे तो चलेगा. लेकिन जितना सिलेबस दिया उसमें से हम लोग ने कितने लोगों ने पूरा सिलेबस किया होता है? सच में बताना. हम लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, हम लोग बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं, लेकिन सच्ची में बताना किसने पूरा 100% सिलेबस पढ़ के एग्जाम दिए? कभी भी? डिप्लोमा में भी? और जो मैंने नोट्स दी थी ना, वो तो कितनी कम थे. बहुत सारे लोगों ने वो भी पूरा नहीं पढ़ा था, राइट? एम आई राइट? करेक्ट. दिस इज व्हाट द सिस्टम इज. इसलिए सारे लोगों ने ये एक्चुअली में ये
वेदव्यास जी ने कहा है ऊर्ध्व बाहुर विरोमेश नश कश्चित शुणोति में धर्म अर्थश्च कामस्य सकिम अर्थन न सेव्यते। मैंने इतना सिंप्लीफाई करके दिया है कि धर्म अर्थ काम को बराबर राइट ढंग से प्रैक्टिस करो तो अर्थ तक पहुंच जाओगे, तो मोक्ष तक पहुंच जाओगे। इतना सिंप्लीफाई किया, इतना सिंप्लीफाई किया, इतना सिंपली, मेरे पूरे जीवन उसके पीछे दिया है। लेकिन फिर भी सकिम अर्थन न सेव्यते, आज तक क्यों लोग प्रैक्टिस नहीं करते? व्हाई दे आर सफरिंग स्टिल? क्यों नहीं प्रैक्टिस करते हैं? और फिर जब हम सात्विक वे में कोई साधना में जाकर के कहीं कंफ्यूज होते हैं, अटकते हैं, वी फील कि हाउ टू फाइंड द वे आउट, तो कौन आता है मदद करने के लिए? हमेशा से एक बंदा हमेशा आता है, उसका हॉटलाइन कनेक्शन है हमारे साथ और हायर रियलिटी के साथ भी, क्योंकि उसका है ना नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका टावर बहुत पावरफुल है। अभी तो बताओ भाई। नारायण जी, नारायण जी। और अगर नारायण जी का नाम आता है तो क्या करने का? नारायण नारायण हाँ, कितनी दफे? 3 दफे 4 दफे। 4 दफे क्योंकि नारायण 4 लेटर्स ना, तो 4 दफे। सिंपल लॉजिक। नारायण 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 नारायण, करेक्ट। जो बार बार बोलते हैं वो आते हैं। एंड सो टू वेदव्यास आल्सो ही केम एंड ही सेड दैट, वेदव्यास जी माफ करो बच्चों को। बोले माफी तो किया है लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड। तो बोले गिव देम द थिंग विच दे कैन कनेक्ट। वो ज्ञान है ना उन लोग के लिए बहुत हेवी हो जाता है, समझ में नहीं आता है। गिव देम स्टोरीज, गिव देम देयर लाइफ स्टोरीज, उनके जीवन को छूने वाली बातें बताओ, और उसमें आपका ये जो वेदों का ज्ञान है ना उसका इंजेक्ट करो। एंड सो वेदव्यास जी हैज गिवन पुराण। पुराण What is Purana? पुरा इति नवम, जो ओल्ड है but still given in the new perspective with all possible stories of our life। हर एक युग में, हर एक लेवल पे, जो जो लेवल के लोग हैं, धारावी में है या राजमहल में है, जो भी लेवल में है, उन लोगों को छू सके, वो लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकते, वैसी वाली स्टोरी उन्होंने दी। एंड सो कितने दिए ऐसे पुराण स्टोरीज? 18 Puranas he has given. What is Puranas? All the stories which is depicting the knowledge of Veda. वेदों के सारे विचार स्टोरी फॉर्म में हम समझ सकते हैं। साचा बोली गाय, सत्यम वद, हमें पाना है तो कैसे पाएंगे, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने दिया। 18 Puranas he has given. इन दिस 18 Puranas पूरे विश्व का ज्ञान है कि नहीं? इसीलिए कहीं की भी स्टोरी हो, कोई भी संप्रदाय की स्टोरी हो, व्हाट इज संप्रदाय? इट्स ओके। सो कहाँ का भी कोई भी है, वेदर इट इज मेसोपोटामियन है, या तो फिर ग्रीस का है, या तो फिर अरब कंट्रीज का है, कहीं का भी है, इन अवर पुराणास ऑल द स्टोरीज आर इंक्लूडेड। फिर वो लोग बोलते नहीं मेरा वाला स्टोरी वेद में है। हाँ, तुम्हारे वेद भी कहते हैं, हाँ भाई कहेंगे ही ना, क्योंकि तुम हम में से ही जन्मे हो भाई। एंड दैट्स व्हाई इट इज अ सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम? कि जब कभी भी कोई भी नई बात बोलते ना, तो देन दे से कि चेक इट विद द वेद। आज हम लोग कोई 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 बोलता है तो हम लोग कहते हैं ना गूगल में चेक करना, करते हैं कि नहीं? लेट्स चेक इन गूगल, ये सही है कि नहीं। व्हाई? बिकॉज फॉर अस नाउ टुडे गूगल इज द ऑथोरिटी, करेक्ट? कि हाँ हाँ नो ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, नहीं शुगर लेवल ये होना चाहिए, होना चाहिए, दवाई से ये होता है, वो दवाई, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वी आर चेकिंग विद द गूगल नाउ। एग्जैक्टली लाइक दैट, हु इज द ऑथोरिटी व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, राइट नॉलेज, अल्टीमेट नॉलेज, सनातन सत्य की बात आती है तो हु इज द ऑथोरिटी? वन एंड ओनली वन, वेद। इसलिए वेद, एनी संप्रदाय, दैट्स व्हाई आई एम नॉट नाउ नेमिंग इट, all of them, they have origin from Veda, and but who simplified this to us? Veda Vyasa. And that's why we say that he is still alive, right? वो हमारे सप्त चिरंजीव में से,
जब कभी भी उनकी बात होती है ही कम्स देयर। इसलिए स्टूडेंट में मैंने कहा कि आई नीड एनर्जी, राइट? बिकॉज उतने बड़े बंदे की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जिसको है ना पैर के छोटे सी उंगली के नाखून के बराबर भी हम नहीं है। करेक्ट? उनकी बात, उनकी आभा, मतलब सूर्य के सामने हम देख सकते हैं क्या? सूर्य से आंख मिला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग उसके किरण जो एकदम कहाँ से निकले, कब निकले और हमारे तक पहुंचते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत, कोशिश करते हैं। या तो परावर्तित होकर के मून की जो शाइनिंग है उस पे, या तो टेढ़े बैठ करके इस ओर, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो राइज हो रहा है तब 12 बजे हम लोग उसके ऊपर झुर्रट कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे महान वेद व्यास जी, जिन्होंने ये वेद को सिंप्लीफाई किया, एंड हर एक सिस्टम उसमें पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वेदा, in all the different systems, one of the important systems, all the systems are important, all the systems are complete, all the Shardarshanas are complete, right? And then one of them is our yoga. And how this yoga is placed in what way in our Upanishads, in our Veda, that we will see in our next class after the Veda. Namo Namaha. Thank you so much. And before completing, that's why, ऐसी personalities, they are our gurus, right? और वो गुरुओं को हमें ये दिनों में याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? कैसे? वो हमारे लिए भगवान है, बराबर। भगवान हम किसको कहते हैं? जिसके पास 6 गुण है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, सततम श्रियम, ज्ञान वैराग्यम। तो जिसके पास पूरा ज्ञान है, पूरा वैराग्य है, पूरा श्री है, पूरा ऐश्वर्य है, पूरे समग्र विश्व का, उसको हम लोग भगवान कहते हैं। तो जो सर्व समर्थ है, ओमनीपोटेंट, ओमनी पावर, ओमनिशिएंट जो है, उनको हम भगवान कहते हैं, राइट? हाँ, व्यास जी को हम ऐसे भगवान कहते हैं। उनके 4 हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मा जी है, बिकॉज ही क्रिएटेड। यस, वो विष्णु सैया पे नहीं सोते, वो शेषनाग पे नहीं सोते, लेकिन फिर भी वो विष्णु है। एंड वो हमारे अंधकार का, हमारे तमस का, हमारे अज्ञान का, हमारी अविद्या का नाश करते हैं, इसलिए वो महेश भी है। करेक्ट? सो ऐसे वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी की सारी अलग अलग पीढ़ियां, हर एक ऋषियों को, क्योंकि हमारे गोत्र अल्टीमेटली किसके वहां से आते हैं, कहां से आए हैं? वी ऑल हैव गोत्र, राइट? कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट शादी वगैरह का हो या कोई गुजर जाता है, तभी भी सबसे पहले क्या पूछते हैं? गोत्र। गोत्र पूछते। व्हाट इज द गोत्र? वो हमारे कोई ना कोई एक ऋषि का नाम है ना, सप्तर्षि में से। ये सप्तऋषि मैम। करेक्ट? हाँ, तो लास्ट टाइम वो थी ना, लास्ट टाइम हमारे ऋषि पंचमी थी, तब हमने उनको याद किया था ना। तो अगर वो वही हमारा गोत्र है, तो मतलब वो ऋषि, मतलब वो ऋषि परंपरा आई कहाँ से, किसने खड़ी की? तो यही लोगों ने खड़ी की हुई है। Correct? And so we are there because of them. These are the days when we are supposed to remember them out of gratitude, out of love and affection. And so, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। भगवान जी, जहां जहां मेरा मन अटके, प्लीज सी टू इट कि आपका ही वो रूप हो। आपका रूप मतलब भगवान का रूप मतलब कौन सा? या तो सदगुरु का रूप मतलब कौन सा? सत का रूप, राइट? सत्व का रूप हो। मीठे भी तो मस्तक ज्या ठिकाने। मुझे नहीं मालूम है मेरी बुद्धि को किसके पास जाने देने का। मैं तो किसी को भी पैर छू लेती हूँ, राइट? किसी के भी पीछे जाने लगते हैं हम, किसी के भी प्यार में पड़ जाते हैं ना। लेकिन भगवान जी, यू सी टू इट कि जहां पे भी मेरा सर झुके, मीठे भी तो मस्तक ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे पाय दोन्ही, तुझे सदगुरु पाए दोन्ही। आपके ही पैर हो। ये कृपा मेरे पे करना कि हमारे गुरु हमें कभी, हमारे ये एंसेस्टर हमें कभी गलत ना जाने दे, हमें संभाल ले, और हम उनके साथ पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे प्यार के साथ जुड़े रहे, कनेक्ट रहे, उनको याद करते रहे और साधना में आगे बढ़ते रहे। एंड सो वी रीच द हाईएस्ट, जो मेरा हक है, बर्थ राइट है। आई शुड अटेन दिस इन दिस लाइफ इटसेल्फ। Namo Namaha. Thank you so much. We'll do one Om and complete the class. O short, Ma long. Inhale.
ओम ओम शांति 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 Have a very divine day and blissful life ahead. Thank you so much. Thank you, ma'am. Namo Namaha. Thank you, ma'am. Namo Namo Namaha. Namaha, Namo ma'am. Namaha, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Namo Namaha, ma'am. Please, हमारी सिस्टम के हिसाब से सब खीर वीर बनाना, दूध पाक वगैरह बनाना, हाँ, और वो काकवासी देना और खाना मस्त, करेक्ट? यस, श्राद्ध का वो एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी फॉलो करना, करेक्ट? यस, अनअपोलोजेटिकली, ओके? बिल्कुल भी जरा भी अपने आप पे शर्माए बिना हिम्मत फॉलो करना, ओके? यस, Namo Namaha, हाँ, मुझे ma'am. भी इनवाइट करना खीर खाने के लिए। मतलब ऐसे ही इनवाइट करना, मैं आऊंगी नहीं, मैं घर पे रोज बनाऊंगी, हाँ, क्योंकि हमारे घर में सब Ma'am, लोग, I want to ask, हाँ, ma'am, I'm sorry to interrupt you, but in every specific festivals, there are some specific sweets that have been created. करेक्ट, But why for this Shraddha Paksha we Sattva. create only दूध rice इज ka सत्व, kheer? दूध इज सत्व, Okay, दूध का ma'am. प्रोडक्शन खैर वो एनिमल प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन वो दूध क्यों बनता है? आरती, यू नो, वी हैव गिवन दिस एग्जांपल, वत्स के लिए बनता है, Yes, ma'am. For it the flows, nobody can Yes. create it, yes, nobody can yes. create it, it comes, it flows automatically. For whom? For the child, for the nourishment of child, correct? So we right now in need of nourishment of our ancestors, इसलिए और दूध सत्व है, इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट, इसलिए हम लोग दूध की वानगी बनाते हैं, दूध की मिठाई बनाते हैं, राइट? यस, वो सत्व की द्योतक है, इट लीड्स टू सत्व। यस, नीति बोलो। मैम एक क्वेश्चन है, साबूदाने के लिए भी अभी क्वेश्चंस होता है कि ये गुड है कि बैड है, इसे हम लोगों को खाना चाहिए? मुझे नहीं मालूम था, पहले सब लोग बैड बोल रहे थे और आजकल साबूदाना सबकी नजर में बहुत बस गए, तो सब लोग साबूदाना की हजारों आइटम वो लोग दे रहे थे। मैं बोली ना, आजकल अहमदाबाद से के साथ वो अहमदाबाद, मेरे घर के नहीं, मतलब मेरी बेटी के घर के नीचे ही वो दुकान थी। ओ माय गॉड, आई वाज मैड looking at it, साबूदाना ना खाखरा, साबूदाना ना फलाना सब, अरे माय गॉड, हाउ मेनी थिंग्स वर देयर। अचानक से साबूदाना हैज बिकम गुड प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज उन्होंने बहुत कोशिश की, सब लोगों से साबूदाना छुड़वाए, नहीं छोड़ा लोगों ने, तो अभी क्या करेंगे? साबूदाना को महंगा बनाओ, साबूदाना का पुलाव भी है, साबूदाना का ये भी है, साबूदाना का वो भी है, सब चीजों में साबूदाना मिलाओ, साबूदाना की सैंडविच है और व्हाट नॉट, क्यों? Now they want us to have it. तो मैम साबूदाना कोई ना जुआर को बाजरी को सूंघता नहीं था, वैसे हमारे घर में तो हमारे घर में तो होता ही था, गुजरातियों के घर में यूजुअली होता है बाजरे की रोटी, बीच बीच में वो हमारे मम्मियां है ऐसी वो बनाती है, और हम लोग ने सबने खाया है गुजरातियों के घर में। बाकी के सब घरों में इतना जुआर इतना बाजरी नहीं जाता है, अगर वो लोग इंटीरियर्स में रहते हैं तो अलग बात है, ओके? और फिर वो जुआर और बाजरा इतना सस्ता आता था कि बात मत पूछो, गेहूं से तो 101% सस्ता था, लेकिन अभी मिलेट्स खाओ और मिलेट सारे बाजरे का, मैंने आटे का, बोले है कब से इतना महंगा हो गया? बोले तू कभी मार्केट आती ही नहीं है, तेरे को पता क्या है? क्योंकि नाउ मिलेट इट हैज बिकम मिलेट्स। पहले उसको क्या वो अपना मखाना हमारे बिहार में, मतलब हमारे बिहार स्कूल ऑफ योगा में बिहार में जाते थे, तो हमारे वहां खाने में रेगुलरली मखाने की सब्जी, मखाना सब एक चीज में डालते थे मखाना, और मैं सोचती यार कितना महंगा है, तभी भी थोड़ा महंगा था, लेकिन अभी वहां उत्तर प्रदेश में तो ऐसे जैसे मुफ्त में मिल रहा है, इतना सस्ता था वहां पे, और अभी मखाना वो तो सुपर फूड बन गया ना। हाँ, तो ये लोग के ड्रामा है, हमें वो सब खाना चाहिए या वो सब फॉलो करना चाहिए जो हमारे माँ बाप ने सिखाया बचपन से,
हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे, तब भी खाते हैं, आज भी खाते थे। हम लोग विंटर में तभी भी ज्वार का बाजरी का वो खाते थे, आज भी खाते हैं, क्योंकि ज्वार बाजरी थोड़ी गर्म होती है। ओके तो इसलिए अगर गर्मी में खाते हैं तो वो गर्म पड़ता है। जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उससे। तो अगर बाजरे का खाना खाते हैं तो हम लोग बाजरे का थेपला बनाते थे, उसमें बहुत सारा दही डालते थे, गुड़ डालते थे, घी मतलब तेल का वो डालते थे। क्यों? क्योंकि इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते। गाँव वाले लोग, जो लोग मेहनती लोग हैं, उनको शक्ति की ज्यादा जरूरत है, गर्मी की ज्यादा जरूरत है, वो लोग रोज बाजरा खा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बैलेंस करके खाते थे कि बाजरा थोड़ा ऐड करते थे, थोड़ा गेहूं होता था। तो वो जो हमें बचपन से जो सिस्टम सिखाई गई है, जो 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल 60 साल से हमें कोई नुकसान नहीं किया है। बहुत सारे साउथ इंडियन वाले लोग सिर्फ चावल पे टिके हैं, और बहुत सारे लोग चावल बिल्कुल नहीं खाए और फिर भी टिके हैं। क्यों? दैट इज व्हाट योर सिस्टम, यू हैव लर्न दैट एंड यू हैव लर्न टू सर्वाइव विद दैट, कंटिन्यू विद दैट। हाँ, बीच बीच में ये खाना है थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे मत जाओ, पागल मत बनो उसके साथ। Got it? Yes? Okay. तो आज से जरा दूध की चीजें खाया करना, दूध की, और सत्व को बढ़ाना। ठीक है? नमो नमः। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन सारिका? Thank you. Oh, no? क्वेश्चन नहीं है मैम, ये दूध रिलेटेड ही एक चीज ऐसे फ्रेंड से बात करते करते डिस्कस हुआ था। तो दूध से पनीर बनता है, तो मैं जनरली घर पे बनाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला बहुत इजी है पनीर घर पे बनाना बाजार से लेके आने से। तो वो बोलती थी कि हम दूध को विष्णु का रूप मानते हैं, इसलिए दूध को घर में फाड़ा नहीं जाता है, इसलिए हम घर पे नहीं बनाते। ओके कोई बात नहीं, लेट देम नॉट डू इट। हम लोग करते हैं, हमारे लिए ठीक है, हम बनाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक बोतल दूध का इतना सा पनीर बनता है। अगर हम सारा पनीर हम खा जाते हैं, मतलब एक बोतल दूध पी गए, आधा लीटर दूध पी गए, इतना याद रखने का बस, और कुछ नहीं। इट्स वेरी हेवी। ओके दैट्स ऑल। बाकी फाड़ भी सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। उसको बोलो फाड़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, वो फट जाए तब तक राह देख। यस यस, मेरे घर थैंक में यू आज मैं पनीर में तब बनाती हूँ जब दूध फट जाता है, क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पोटेंट खाना खाती हूँ, बहुत ही ज्यादा हेवी खाना खाती हूँ। तो इतना और हेवी खाने की जरूरत नहीं, रसगुल्ला वगैरह आई अवॉइड। क्यों? क्योंकि एक रसगुल्ला, क्योंकि मैंने एक दफे सालों पहले घर पे बनाया, फिर मेरे को पता चला यार एक बोतल दूध मतलब आधा, वो माप देते हैं ना हमारे टीचर्स जो सिखाते हैं, तो उन्होंने नाप दिया था कि एक बोतल दूध लेने का, उसमें इतना इतना नींबू डालने का, फिर ऐसे पड़ेगा, और फिर तो 2 रसगुल्ले बने, वो भी छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े वो जो आजकल मिलते हैं ना तिवारी में, इतने बड़े वो नहीं बने, इतने छोटे छोटे 2 ही बने। मैंने कहा यार ये 2 रसगुल्ला, हम तो 2 क्या 4-5 खा लेते हैं ना, गप 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 अंदर चले जाते हैं। मतलब कितना दूध गया, ताकत है क्या उसका डाइजेस्ट करने की? सब लोग है ना वो बादाम कतली आजकल बहुत चल रहा है यार, एक बादाम कतली में कम से कम 5 या 10 बादाम जाती होगी, राइट? उतना ही घी, उतना ही शक्कर। और अगर हम लोग एक कतली के बदले में 10-15 2-4 कतली खा लेते हैं, मतलब कितनी बादाम खा ली? उतना बादाम डाइजेस्ट करने की आदत है क्या? नहीं। अगर आदत नहीं है, अगर ताकत नहीं है, तो वो वेस्ट में जाती है भाई। और हमें लगता है हमने बहुत अच्छा खाना खाया। अरे भाई लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो, 1000 रुपए बर्बाद कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट? एसेंस क्या मिला? अगर कुछ नहीं, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेज, राइट? हाँ, और फिर ये खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो डाइजेस्ट करने के लिए फिर हम ज्यादा सोते हैं, करेक्ट? या इंडाइजेशन हाँ, होता तो है तो फिर मेडिसिन होते हाँ, हैं। फिर इंडाइजेशन होता है तो फिर दवाई खाओ, फिर वो विशियस सर्कल में पहुंचते हैं। वही ना, इट इज अधर्म। भगवान जी की मूर्ति क्यों लाना है कि आई कैन कॉन्सेंट्रेट, लेकिन बड़ी मूर्ति लाओ 25 भाई 2 घंटे मेरे ही गले के गणपति हम इधर उधर घूमे, क्यों? क्योंकि वो मुड़ नहीं रहे थे। भाई इतना बड़ा गणपति लाए क्यों तुम लोग? और व्हाट इज द पर्पस? बड़े गणपति है तो ही भक्ति ज्यादा। See, we forget the essence of it. Essence of it, yes. और इतना नॉइज पोल्यूशन, उसकी वजह से कोई साधना कैसे कर सकते हैं? साधना में भंग होता है, तुम लोग को पाप लगेगा। और फिर भगवान जी ने क्या कहा है? सच्ची में। और अगर वी आर ए पार्ट ऑफ इट, देन पाप हमें भी लगता है, और लगता ही है ना ये सब, इसलिए तो भुगत रहे हैं। भगवान जी ने क्या कहा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, मैं आऊंगा खत्म करने के लिए। तो ये गलत है, हो जाएगा। जहां जहां पे जो भी गलत है वो जाएगा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अधर्म बढ़ा है, लेकिन साथ साथ में सत्व वाले लोग कम थे। अभी सत्व वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जब सत्व बढ़ता है तब भगवान आते हैं, सत्व को बचाने के लिए भगवान आते हैं, सिर्फ अधर्म को मारने के लिए नहीं,
धर्म को संभालने के लिए आते हैं। तो जब हम लोग धर्म को संभालने लगेंगे ना बराबर, तब वो आ जाएंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। राइट? नमो नमः, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैम यस यस, बोलो बोलो बोलो। मैम मैं आपने समझ जो बुक्स रेफरेंस में दी है, कोई एक ही बुक रेफर कर सकते हैं कि सब बाय करनी हो? कौन सी, मतलब ये यारडी वगैरह? हाँ जी, हाँ जी। अगर आप में से आपके आपके पास इसमें से कोई एक बुक है तो वो रिफर करिएगा। अगर वो बाकी नहीं है, और लास्ट ईयर हम लोग ने जो बुक दी कहा है, और हाँ। पतंजलि योग सूत्र के लिए बुक कहा है, और षड दर्शन के लिए भी बुक्स कहा है, वही बुक्स अभी भी ये साल में भी इस्तेमाल कर सकते। ओके क्योंकि फाइन। ये सिलेबस जिन्होंने बनाया था ना, हमारे रांदेरिया सर ने ये सारे रेफरेंस बुक दिए हैं, और रांदेरिया सर वाज वेरी गुड विथ ऑल द बुक्स एंड ही यूज्ड टू अच्छा। रेफर आल्सो। ओके हम लोगों को जेरोक्स भी दिया करते थे, 2 मैम पेज उसके से। तो इसलिए उन्होंने ये सारी किताबें दी हुई है। और अभी एक भी ओके। किताब हम लोग अगर डिटेल में नहीं पढ़ सकते तो सारी किताबों लेकर के और कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट? हम लोग उतना ही खाएंगे जितना हम डाइजेस्ट कर सकेंगे। तो हम लोग ने ऑलरेडी खाना खरीद के रखा है, क्या हमें खाना है, तो उसी में से खाते रहेंगे। ठीक है? दैट इज मोर देन ठीक है। इनफ। ओके मैम, थैंक यू। मैम श्योर। या मैम बोलिए राजश्री। हाँ मैम बोलिए। लास्ट ईयर जो बुक मैंने लिया नहीं था तो वो आप परचेस कर सकते हैं क्या, जो हाँ, कर आपने रिफर सकते किया हैं। था? ओके मैम, कौन सी थैंक यू। वाली? जो आपने लिखी है मैम, आपकी, हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली, वो तो कभी भी कर सकते हैं, कर तो सकते वहां हैं। पे श्योर। आके ले सकते हैं मैम यूनिवर्सिटी में कि या नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जाता है, मैं तो जाती ही नहीं हूँ। और ये बुक्स ओके यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में नहीं अवेलेबल है, वो लोग नहीं रखते हैं, वो किसी की भी बुक नहीं रखते हैं। इसलिए तो यूनिवर्सिटी से हम नहीं ले ओके मैम, सकते। इसका या एक तो बार आप कहाँ रहते हैं बोल दीजिएगा, वहां पे कुरियर से भिजवा बदलापुर देंगे, में, या तो चन्नी रोड पे है तो चन्नी रोड। हाँ बदलापुर में हाँ, हूँ तो मैम। मैं अगर आपको बोलूँ चन्नी रोड जाके लेके ले आओ तो इट विल बी टू मच फॉर यू। तो या तो कुरियर के थ्रू या ऐसे कुछ भी हम लोग अरेंज कर लेंगे, या तो कभी यस कहीं मैम। अगर ये सर्टिफिकेट वगैरह के लिए मिलना अगर होता है कहीं पे हमारा बाय ओके मैम। चांस प्रे कि मिलना हो, तो वहां पे बुक मिल जाएगी। करेक्ट? मैम मुझे चाहिए था वो बुक, तो आप मुझे अगर उसका लिंक भेज देंगे तो मैं पेमेंट कर दूंगी, और फिर मुझे कुरियर कर हाँ हाँ, सकते हैं तो ठीक है बता। ठीक है, और वो भिजवाने का भी कुछ कर लेंगे। वो बदलापुर में यस अभी नहीं तो एक साल पहले है ना, वहां पे हमारे जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने रखी थी अपने पास, तो वो एरिया के सारे लोग वहां से जाकर के लेके आए थे। लेकिन ठीक है, वो हो जाएगा कुछ ना कुछ, इट्स नॉट अ बिग डील, वो पहुंच जाएगी अब तक। ठीक है? थैंक यू मैम। यस, यस, नमो नमः श्योर। मैम। नमो नमः, थैंक यू सो मच। नमो नमः एवरीबॉडी। नमो नमः।